So then the picture appeared first time in Stardust magazine with Rishi Kapoor opening a champagne bottle with photograph by Jayesh. Slowly people started knowing me. There is somebody's arrived, and that's how I entered into this Bollywood. At one point of time you feel that you are finished. It's over. Before it started, I felt it's over. On the road, totally, without studio. So then I didn't give up. I took up again the photography, and then there was no look back. Till like decades and decades after that. And number of bylines, and number of covers, and number of stars, and number of fans, and like there was no look back. The first time in Bombay City, the Portfolio studio started. That was you? Yes. You started the whole new process? Yes. हेमा जी सबका शूट कर लिया था. राजेश खन्ना का भी शूट कर लिया था. मतलब आई वॉज ऑलरेडी मूविंग अराउंड. मैं जितना मैगजीन का मेरा कवर्स थे वो टाइम पे ऑलरेडी मेरे ना कम से कम 60-70 कवर आ चुके थे. सारे कवर्स का कोलाज बनाया था उसने. बोला यू आर अ स्टार. You should sit against this collage. As Jayesh Sheth. Midday में ad. बच्चन साहब का तस्वीर. Photograph by Jayesh Sheth. मैं मतलब वाइफ को मैंने पहली बात बताया था कि देख भाई मेरी एक शादी तो हो चुकी है. You are coming as a Southern. Remember that. मेरी शादी ऑलरेडी मेरा कैमरा से हो चुकी है. उसके बिना मेरा कुछ नहीं है. एक बार तू चली जाएगी चलेगा. But I can never leave this one. नमस्ते. आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ. तस्वीरों से कहानियां बनती है, कहानियों से जिंदगी. जिंदगी की एक तस्वीर जिसे आप अपनी तरीके से खींच सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कविता के रूप में गा सकते हैं या समझ सकते हैं. आज मेरे साथ हैं ऐसे ही बहुत सुंदर तस्वीर खींचने वाले, बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध बॉलीवुड के फोटोग्राफर जयेश शेठ जी. आपका स्वागत है. थैंक यू आरती. थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन. आई रियली लाइक द वे यू डिस्क्राइब्ड अबाउट द तस्वीर से व्हाटएवर. आई मीन आई एम बैड विद दैट बट यू सेड इट सो वेल. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. सो या एज यू सेड कि तस्वीरों से कहानियां बनती है. समथिंग कहानियों से जिंदगी तस्वीरों की कहानी है. वाओ सुपर वेल डन. सो यू आर राइट. या सो एक्चुअली माय जर्नी I started, I don't go with how I started and all that, I just would like to tell you just in a flow, like how it goes. Okay? मैं वहीं पर आऊंगी. हाँ, तो मैं कैसे शुरुआत करूँ? आप बताओ मेरे को कैसे शुरुआत करूँ? वही, मैं जो ये जयेश शेठ है, ये जो सेठ है, इन्होंने कितनी मेहनत की है सेठ बनने के लिए जीवन में. वो आपको शुरुआत से शुरू करना है या आज से पीछे जाना है, जैसे आपकी मर्जी. आई थिंक अगर हम लोग इसको एक नैरेटिव करते हैं, इफ यू जस्ट गो विद द फ्लो, सो देन आई थिंक it's better we just go from the beginning. Yes. Then we'll come to the conclusion about my life. Even I will realize that what have I done, what have I not. I've never shared this with anyone. Absolutely. So मुझे भी एक जानने को मौका मिलेगा अपने आप से. Yeah. और because of course through you and through your चित की बात के जरिए मुझे भी अपने आप को जानने को मिलेगा. So that's a good opportunity for me also. Yes. It is heart-to-heart conversation. Yeah, exactly. Yes. And luckily, because I've known you since ages, since years, since in my your initial childhood career. Absolutely, yeah, almost exactly. Yeah. So it becomes comfortable for me, yes, to share my life, thoughts, my journey, process, and all that. It was generally just before. We were discussing out. Yes. When I just having a cup of tea also. At that time also we discussed about the upbringing. Yes. Yes. So, let me just tell you, my upbringing was fabulous. Mm-hmm. Today, I would just like to say one thing, that whatever I am today, it is my parents' upbringing. Definitely. Number one,
my all the school teachers, my principal, जिनके पास अपने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी पढ़े हुए थे। अरे वाह जी, वाह, तो क्या मैं बात। अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरा अपब्रिंगिंग इन लोगों के हाथों से मेरी मतलब ये हुआ है। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड Yeah. एक्चुअली। Yeah. So as a kid, I was very naughty kid. My childhood, I enjoyed my childhood like crazy. I was naughty in the sense not harming anyone, but during the school period, suddenly India Australia की मैच चल रही है और हम तो क्रिकेट के दीवाने थे, सब पागल थे। उस टाइम तो रेडियो होता था, अरे हाँ, सो आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट कि टेक्नोलॉजी हमने इतनी देखी है, Changes इतना are- ट्रांजिशन देखा है, Yes. थ्रू आवर जर्नी वी हैव सीन Yes. सो मेनी थिंग्स, yes. तो स्कूल का पीरियड मिस करके मैं देखता था कोई मेरे को पकड़ेगा नहीं करके, सामने मतलब एक करियाने की दुकान होती थी, हाँ वो किराने की दुकान पे जाके मैं मतलब सर बोलता था चल स्कोर लगा देना। और रेडियो में वो टाइम पे ना इट वाज वेरी वेवी काइंड ऑफ अ साउंड, या कभी आता है डिस्टर्बेंस, मतलब बहुत होता था, ऐसे आज के जैसा टेक्नोलॉजी नहीं थी। बम्बई था या कहीं और? बॉम्बे, आई वाज इन मुलुंड दैट टाइम। अच्छा हाँ. सो हम लोग पहले मतलब मेरे बचपन का शुरुआत सेंटा क्रूज से हुआ, बट देन वी शिफ्टेड टू मुलुंड Okay. because my dad once gave we are two brothers, so we brothers, he came one fine day and said that हम लोग ना अभी अब ऐसी जगह पे हम लोग शिफ्ट होएंगे कि आपको मजा आ जाएगी, चारों तरफ हरियाली, पूरी तरफ बाजू में ऐसा बालकनी से आप जंप करोगे तो गार्डन में गिरोगे। हाँ सो पूरा ऐसा फैंटेसी क्रिएट हुई थी, हाँ एंड वी वर लाइक सेड ओके डैड पापा आपको जो बोलो, हम तो मतलब आने को तो एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। सो इट वाज लाइक फुल ऑफ नेचर, हाँ एंड ही वाज अ नेचर लवर बेसिकली। तो उनको सेंटा क्रूज वो टाइम पे भीड़ भाड़ वाली जगह लगती थी काफी, हाँ यार यहाँ पे ट्रैफिक है, बसेस हैं, आवाज आ रहा है, आवाज बहुत आ रहा है, लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड ऑल दैट। ही वाज लाइक बहुत मुफलिस बंदे थे Peace वो, loving. पीस लवर थे, मुफलिस थे। हाँ. तो करके हम लोग उधर गए। बाद में तो हम लोग तो मतलब सबने दोनों मतलब जो मुंह सड़ाते थे, रात को नींद नहीं आती थी, यार कहाँ लाके डाल दिया पापा आप लोग ने हम के है। अच्छे कहते सेंटा क्रूज में घोड़बंदर रोड, एसवी रोड पे हम लोग का सारा घर था, और यहाँ से आपने इधर मुलुंड में isolated place that was Mulund was not even nobody was knowing Yeah. कि where is Mulund, Yes, yes. So that was the kind of the nostalgia I'm just thinking about. So but luckily my upbringing was like I was a very art lover from my childhood only. मतलब as a kids like I was in I think 4th or 5th standard, and we had our band, musical band. Oh, Yes. this I never knew. Yes. So I was a harmonium player. Acha. Yeah. And I used to play harmonium effortlessly. Yeah. So music was like in my, along with the, going very parallel along It with was the in visuals. your blood. Yeah, it was in my blood. Ah. Blood because mom was a good singer, and she used to like play harmonium, and she taught me also a little bit. And then I took off nicely. Okay. So हम लोग का बैंड था, Okay. सब बच्चों लोग का। हमने कॉन्सर्ट भी करते थे हमारा बच्चों का। Wow, Yeah. that's so cute. Yeah. And स्कूल then में? स्कूल के बाहर भी, मतलब छोटे जो वो टाइम पे मुलुंड वाज जस्ट डेवलपिंग, वेरी लिटिल डेवलपिंग। तो छोटे ऑडिटोरियम्स होते थे, उनको मतलब ये करने के लिए हम लोग जाते थे। What was your age that time? That time I was like 7 or 8. बस Yeah. इतना चिंटू। या चिंटू, टोटल चिंटू। इधर से ऐसा बाबरी करते थे, मम्मी तैयार बना के देती थी, साइड पार्टिंग करके पूरा तेल लगा के स्कूल में जाते थे वो बेटी लेके। और आई यूज्ड टू हेट द अर्लियर स्कूल, बट द लेटर स्कूल व्हेन आई वेंट इनटू लाइक ज्ञान सरिता, व्हिच वाज अ पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी का स्कूल था। सो इट वाज मोर लाइक अ पाठशाला काइंड ऑफ अ स्कूल, व्हिच वाज अमेजिंग। मतलब एवरी डे वी यूज्ड टू रिसाइट द श्लोकास एंड गीता तो ऐसा मुंह पे थे हमारा। 12वां अध्याय 15वां अध्याय का श्लोक ऐसे रिसाइट करते थे हम लोग। कुछ याद है अभी? थोड़ा बहुत। You can recite something. Like ऊर्ध्वमूलमतः श्वाक
अश्वत्थम्बा समथिंग, आई मीन एकदम से अभी याद नहीं आ रहा है, बट मोटा मोटी थोड़ा बहुत ऐसा. बट समटाइम्स यू नो दैट वाज द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग वाज ब्यूटीफुल, एंड माय टीचर्स वर लाइक यू नो वेरी फॉन्ड ऑफ मी फ्रॉम दैट डे. फ्रॉम माय फर्स्ट 5th स्टैंडर्ड में शिफ्ट हुआ हम लोग दूसरी स्कूल में, तो 5th से लेके 11th तक मैं स्कूलिंग किया वहाँ पे. वहाँ पे मैं प्लेज में पार्टिसिपेट करता था, तो ड्रामा एक्टिविटीज ये सब में मतलब. So you used to act? Yeah. Wow. Yeah. I used to act like a main leads. Wow. Yeah. Wow. Like उसमें क्या होता था ना, like होली का त्योहार है. So like there was to like holy festival, during holy festival they used to like play. अरे प्रहलाद कौन बनेगा, तो I used to be mostly प्रहलाद only. होलिका की गोद में. So like yeah, so that was like fun, and like it was like such a chill out life. And that time you know क्या होता था कि एक ही चीज अच्छी थी, बहुत अच्छी लगती थी मुझे, जो आज भी मैं याद करता हूँ ना, तो आई फील कि लाइक माय गॉड, मतलब ये दिन वापस आ जाए. What was that? That was like a friendship. किसी के घर पे मतलब कुछ खुशी है तो सब लोग खुश होते थे. हाँ, दूसरों की खुशी में खुश होना, अपने का खुश होना. मतलब किसी के घर पे अगर रेडियो भी आता था, फ्रिज भी आता था, तो लगता था अरे यार वाओ मैन, लेट्स सेलिब्रेट. हाँ, तो ये जो है ना, ये आज देखने को भी नहीं मिलता है. नहीं. आज तो किसी का एक दूसरे का इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं लाइक कर सकते. एग्जैक्टली. किसी को अवार्ड मिल गया तो भी कांग्रेचुलेशंस. दैट वाज द डिफरेंस आई एम सीइंग इट, यू नो, अ ह्यूज डिफरेंस. और वो टाइम पे ना ऐसे कुछ ये नहीं देखा था मैंने कि ये पैसे वाला, ये अमीर, ये गरीब, उसका कोई डिफरेंशिएशन था ही नहीं. कोई डिफरेंशिएट नहीं करते थे. सब लोग एक दूसरे को, मतलब हमारे बिल्डिंग में वो टाइम पे किसी के 2 फ्लैट थे, तो मतलब अच्छा तेरे 2 फ्लैट है तो चल ना तेरे घर पे अपन अड्डा जमाएंगे. दैट फ्लैट वाज फॉर अस, एज इफ कि तेरा घर खाली तेरा नहीं रहेगा बॉस, हमारा सबका रहेगा. एंड पीपल यूज्ड टू लाइक यू नो, मतलब किसी भी घर पे घुस के क्या है, आज क्या बना है, चलो खाखरा बनाए, खाखरा खिलाओ. ये मतलब इट वाज लाइक सो मच ऑफ लाइक यूनिटी, लव बोलते हैं ना, जो आज अपने को मतलब किसके घर पे जाने को मतलब 10 बार व्हाट्सएप करना पड़ता है, भाई आर यू अवेलेबल, आर यू नो, बहुत पूछना पड़ता है. अपने बहुत प्यारे दोस्त के पास भी जाने के लिए मैसेज करके इन्फॉर्म करके, फिर जाने से पहले कॉल करके, फिर यू कैन गो. एग्जैक्टली. इतना सारा प्रोटोकॉल है. एब्सोल्युटली. This used to be there in America before. Exactly, true. I have heard this. Yes, you are right. It was not there in India. Not in India. Now it has become very common in India. Now very common. चले करे बिना फोन के कैसे आ गया यार, वो ऐसा क्या हो गया यार, you know, like that. But हम लोग का अपब्रिंगिंग ऐसा था, तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता आज भी. Suddenly if I get surprised is like during lockdown, one of my friend, he had no place to go. He stayed at my place for 15 days. So it was like very easy. I said, you don't need to worry. Come, there's a place. Yeah. नीचे सो जाएंगे और क्या होगा. Correct. मतलब जो भी मतलब है, बेडरूम तो है, but in spite of that, दिल बड़ा होना चाहिए. वो मैंने नहीं देखा आज. सब ना ऐसा गिनती कर रहे हैं. Generally also, like I mean, we'll come to that area, but I'm just mix थोड़ा चलेगा ना. So अभी जैसे मतलब मैं आज भी देख रहा हूँ ना कि हम लोग जब भी शूट करते थे, मैंने आपकी भी बहुत अच्छी तस्वीरें निकाली थी. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव दोस पिक्चर्स, अदरवाइज आपको रियली शोन टू द किड्स, यू नो, अपने बच्चों को दिखाता था मैं, सबको, पूरी दुनिया को दिखाता था मैं. दैट वाज वन ऑफ माय फाइनेस्ट शूट एक्चुअली विथ यू, यू नो. एंड क्या था कि हम लोग ना गिनती नहीं करते थे कि यार 36 फोटो का रोल खत्म हो गया बस. बिंदास मूड बना तो हम लोग ना देखते नहीं. और वो टाइम पे तो कितना कॉस्टली था, बहुत कॉस्टली, ह्यूज, मतलब ह्यूज. I'll come to that point. पर मैं आपके बचपन में थी. मैं भी बचपन में आ रहा हूँ वापस से. So I'm coming back to that. So I'm coming back forth. है ना. तो बचपन में ये मतलब मेरी मतलब शरारत जो होती है ना, तो उस सब लोग लाइक करते थे मुझे. तो I became a very famous. In fact, my elder brother was more extrovert than me. What was? We had 2 brothers. Yeah, I was not aware about it. Yeah, so we had 2 brothers. So my elder brother was like, पूरा अंग्रेज था वो. Okay. And he was like attitude, इसके साथ बात नहीं करने का. वो लोग वो घर में रहते हैं, वो लोग वो चौल में रहते हैं, और उधर मैं ज्यादा मिक्स नहीं होऊंगा. Okay. And I used to mix up with each and every one. Yeah. And he used to not like it. He used to tell me, I'll complain to dad, mom, especially mom, you know. I said, do whatever you want. मैं छुप छुप के भाग जाता था.
So like that way, his name is Paresh, and he was very मतलब उसका English and all that literature, English and all that was commanding. He was the first one who taught us कि like ये गेम टेनिस का है. ये रॉड लेवर साहब जो थे वो टेनिस के चैंपियन थे. अब ये जॉन बॉर्ग है, ये जिमी कॉनर्स है. इनका मैच देखो आप लोग. अच्छा. और हमको पॉइंट नहीं मालूम पड़ता था. तो बोला स्कोर क्या हुआ. बोला कि यार 6-1 से जीता वो. अच्छा. 6-2 से 6-6 5 सेट्स की गेम होती है. ये सब नॉलेज हमको ना ऐसे आपस में खेलते खेलते आया. ही वाज ओनली वन यूज्ड टू रीड BBC दैट टाइम. आई मीन हियर BBC दैट टाइम ऑन द रेडियो. तो उसका इंग्लिश एंड ऑल दैट फ्रेजेस एंड ऑल मैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स में था भैया. मैं तो अपना देसी टाइप था थोड़ा सा. सो मुझे इंग्लिश बोलने में भी बहुत तकलीफ हुई थी. बिकॉज हम लोग का गुजराती मीडियम था पूरा. करेक्ट. तो गुजराती मीडियम में हम लोग को ना उतना इंग्लिश वाज जस्ट अ सब्जेक्ट. नहीं होता है उतना ज्यादा. मतलब इट इज जस्ट अ सेकंड लैंग्वेज. या तो नेचुरली उसको ट्रीटमेंट भी वैसी ही मिलती है. एग्जैक्टली. या ज्यादा हमको शेक्सपियर वगैरह नहीं सिखाते. यू नो. तो हमारा थोड़ा बहुत होता. तो मेरी जो कजिन मतलब जो इंग्लिश बोलने वाले थे, आई यूज्ड टू गेट वेरी इंप्रेस. यार मैं सुनता था क्या बोलते हैं लोग यार. मैं कभी बोल पाऊंगा ऐसे. यू नो लाइक दैट वाज दैट कॉम्प्लेक्सिटी आई हैड दैट टाइम. So the thing with me, I discovered when the complexity used to hit me, I used to accept it as a challenge. To improve yourself. To improve myself, not to prove anybody. For yourself. For myself. Personally. ये मेरी कमी है बॉस. मैं कुछ भी करके इसको तो मैं मतलब सुधारूंगा. या तो उसको तो मैं मतलब ना I'll play with it. So that was the killing. I would say the advantage, you know, about fighting spirit. Yes. So then finally, 11th किया हम लोग ने. सब कुछ हो गया. I got a very good marks and I was a science student basically. Oh, great. Yeah, my maths was amazing. I was thinking you must be studying arts. But आपने साइंस बोला. क्या बात है. I was a science student. Okay. और साइंस में मेरा physics, chemistry and maths like there was like I was always a topper. Wow. Always a topper. मतलब I was अभी भी मेरे स्कूल के टीचर्स सब मिलते हैं. You know when they meet my daughters and all that, बोला कि your dad had 2 competitors. First, second, third में तेरा डैड क्या तो फर्स्ट होता था या तो दूसरे जो 2 होते थे उनके साथ में वो लोग ही होते थे. So I was a which college? I was in the school. I'm talking about the school. Okay. So then 11th क्रॉस करके जब मेरे को डिसीजन लेना आया कि like now what to do. Meanwhile मेरा डेवलपमेंट towards the visual arts काफी बढ़ते गया. स्कूल में सब्जेक्ट था ड्राइंग तो था ही. तो ड्राइंग टीचर था. उसने एलिमेंट्री मेरे एग्जाम्स में मतलब मैंने दिलवाया. और एडवांस भी जो था 2 एग्जाम्स होती थी उस दोनों मैंने पास की थी. तो दैट वाज अ मस्ट यू नो इफ यू वांट टू एवर गो फॉर दैट ड्राइंग एंड ऑल समथिंग आर्ट्स रिलेटेड स्टफ यू नो. सो एनीवेज सो वो मैंने क्रॉस किया. अभी उस वक्त जो 11th के बाद का जो वैकेशन पीरियड था, समर वैकेशन होता था या तो अपना जो रिजल्ट आने का जो वैकेशन होता था वो थोड़ा लंबा था. 2 महीने का होता था. एंड उसके पहले मेरे को ना मतलब देयर वाज डैड्स फ्रेंड हैड अ स्टूडियो. सो आई हैड टू गो टू हिज स्टूडियो जस्ट टू सी. इन द कैमरा यूज्ड टू लाइक यू नो was displayed on the camera for a sale and all. You know, Agfa click cameras and all that. Very manual cameras. Okay. Hardly no advanced nothing. Like take चाप दबाओ फिर रोल हाथ से घुमाने का type of you know film cameras. Yes. So I used to like ask him. मेरे को ना आप फोटो निकालते हो ना तो मेरे को देखना है एक दिन. You know, so I mean that guy was a very well-known photographer there in Mulund. What was his name? His name was Babu Bhai Joyshar. Photovision was his shop. The studio. Okay. And he used to do all the corporate shoots that time, like with Johnson & Johnson company ka CEOs and all those people, like the managing directors and all that. Okay. So he was like a king that time. And his name was like fully ultimate. vibing. Wow. So I said, wow, man, this is hitting me somewhere down the line, you know. And so during that SSC, that 11th का जो vacation, summer vacation था ना. So my uncle, my mama, he also had a studio in town. अच्छा, he was also a photographer. मतलब my nana was a photographer. Mom's dad. So that is where it is coming from. So my mom's dad was a photographer, and he was very famous. Okay. Meaning like, and he was a proper photographer के साथ ना, he was a fabulous business guy. अच्छा. He converted photography into a business like nobody could even think of.
अच्छा इन दोज इयर्स. अच्छा मीनिंग माई मॉम का जब भी शादी मॉम बोलती थी करके कि मतलब जो भी रिलेटिव्स हमारे बोलते थे कि जब भी मॉम की शादी हुई थी कच्छ में हुई थी डैड के साथ, बॉम्बे से पूरा शिप इतना मतलब ऑर्नामेंट्स एंड व्हाटएवर दिस जवेरात पूरा and all that. जवेरात एंड ऑल दैट गया था, वो देखने के लिए पूरा कच्छ जमा हो गया था. वाओ इमेजिन. वाओ Yeah. So he converted the art into commerce ओके in those years. ओह वाओ. मतलब मॉम What कभी was कभी his बात. name? His name was Pritam Lal Sheth. Pritam Lal Sheth. Yeah. Okay. And some prominent work of like he used to do corporate only. No. My Nana ji was to like doing all that, you know, that Kalba Devi and all that festival में जो लड़कियां तैयार होती थी मोड़ा कोट and all those festivals का पूरा बाढ़ वो ना काला घोड़ा फेस्टिवल जैसे होता है वैसा. हाँ, like that. He used to shoot like, you know, that in the studio. Okay. मतलब that studio was, I remember it was about 5,000 square feet studio Wow. in town, right opposite Metro Theatre. Wow. Yeah. Wow, man. So dad, Mama was a engineer from अपना IIT. Okay. तो वो IIT इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर थे. हाँ. लेकिन उनको भी फोटोग्राफी का बहुत कीड़ा था. He was also like, you know, going crazy for the cameras and photography and all that. So I used to hang around with Mama and I was very pat but very close to my Mama. Okay. मतलब एकदम से बोले ना मामा प्यारा मतलब बच्चा. प्यारा बच्चा. Absolutely. And I was very pampered by him. अच्छा. Totally pampered by him. अच्छा. So when he got the first camera and all that, I said, Mama, I want to like see through this camera. अभी मैं कैमरा नहीं पहले तो उसको ये रोल कैसे डालने का वो सब सीख तू पहले. So I used to go to the studio and whatever little work used to come there. And there was one जैसे I remember like, you know, how my Kashinath, my assistant is there with me. Yes. I don't know how ना आरती, it's somewhere down the line in the चक्र बोलते हैं ना हम लोग, कहीं ना कहीं वो चक्र पता नहीं कैसे आता है. Like Kashinath, my assistant, he's like with me for nearly 22-23 years. बहुत लंबा down the टाइम हो line. गया. I've been seeing him since forever. And till date, you know, we are like this. Yes. You know, inseparable. Yes. That way, same way, मेरा जो नाना थे ना, उनके पास भी ऐसे ही काशी जैसा एक असिस्टेंट था, वो फोटो खींचता था. Oh. He was actually a photographer. Okay. Nana ji was like on a sales talks, impressive talks. He used to just come at the time when everything used to get ready and like click करने को star के जैसा. You know? So like I've seen all those days in the period of the drama. So I was like saying, oh my God, like, you know, how this entire journey is of the life comes to you. Why? Yes. You know? Yes. So certain Life is a circle. Exactly. It comes back exactly. to you. Yes. तो मामा के उधर सीखते गए थोड़ा बहुत. मेरे को बहुत इंटरेस्ट डार्क रूम टेक्निक्स वहां पे जो मैंने पकड़ा और वहां से मेरे को जो इंटरेस्ट चढ़ा कि लाइक आई सेड ओ माय गॉड दिस इज समथिंग, यू नो, इट्स लाइक आई एम गेटिंग, मुझे ना नशा चढ़ रहा है. एक्चुअली पर्पस फाइंड्स यू इन योर लाइफ ना. इन योर लाइफ आपका एक होता है कि आपका पर्पस क्या है और एक होता है कि पर्पस फाइंड्स यू कि नहीं तुझे यही करना है. यू आर बोर्न फॉर दिस. यस. So आपका पर्पस ने आपको ढूंढ लिया. Absolutely. And then you were like growing with that. Yes. तो अब वेकेशन में like 2 months. 2 months constantly. और उसके बाद ना मैंने बोला मामा को, मामा मेरे को कुछ पढ़ाई नहीं करनी आगे, मेरे को यही करना है. बोला कि डोंट बी स्टूपिड, पढ़ना तो पड़ेगा ही कुछ भी करके. एंड वी वर, यू नो, फ्रॉम अ गुड फैमिली, मतलब मिडिल क्लास गुड फैमिली, नॉट लाइक वेल टू डू. इतना नहीं कि मतलब कल सोचा और आज कैमरा ले लिया, नॉट लाइक दैट. मतलब वी हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट, वी हैव टू वर्क फॉर इट. सो मामा यूज्ड टू से, बट मेरे को आज भी याद है मामा ने मेरे को एक बात अच्छी बताई थी जो आज भी याद है मुझे, कि फोटोग्राफी तू अगर सीख लिया और तूने अगर कुछ उसमें दमदार कुछ काम किया ना, वो तेरे को कभी भी धोखा नहीं देगी लाइफ में. इट विल नेवर बिट्रे यू बिकॉज इट इज आर्ट. Art is always like that. Exactly. It will never betray you. It will never. You know, people can take away everything from you. But they cannot take that art from you. Exactly. That is there within you. Absolutely. So आज हम लोग जो ये फोटोशॉप और एडिटिंग जो करते हैं ना, अपना फोटोशॉप के ऊपर, तो वो टाइम पे हम लोग मैन्युअली करते थे. तो उसमें ना एक फोटो को ना 3 दिन 2 दिन ना ऐसा
आंख बाहर आ जाती उतना काम करना पड़ता था। वो बारीक minutely, ब्रश बारीक से brush मुझे से। पता है। Yes, मैंने yes, देखा yes, है, yes. बैकहैंड भी देखा है Backhand मैंने। में देखा होगा आपने। But those मुझे were भी the- इंटरेस्ट रहा है इसमें, मैंने yeah. So, done but this. I was thinking यार इसमें तो इतना टाइम जाता है, ये जाता है। हम्म, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता था यार काश ऐसा हो जाए, सब अपने आप ऑटोमेटिक हो जाए। हाँ, जब भी बहुत हो मेहनत गया। हो गया। बताओ आप। कैमरा भी मतलब हम लोग सोचते थे यार इतना हैवी हैवी कैमराज लेके घूम रहे हैं यार, उसका रोल बदली करना पड़ता है, ये क्यों ऐसा नहीं होता कि फोकस भी ऑटो हो जाए, हाँ, क्यों नहीं अपने रोल निकल जाए। हाँ, सब कुछ हुआ ऐसे। दिस You एंटायर manifested. ट्रांजिशन आई हैव सीन आरती, इट इज नॉट अ जोक। It is not. It is not. Not सो at all. मैं एक चीज मैंने देखा कि मैंने समय को समझा, हाँ। समय ने मुझे संभाला। Absolutely. मैं समय के साथ चलते गया Right. और फ्लो में गया। Right. सो मुझे इंट्यूशन जो होता था कि मुझे अभी बस यही करना है, हाँ, so there was like and a couple of the assignments which mama sent me, like there was some function shoot and all that, शादी का shoot है, ये shoot है and all that. So I was basically a wedding photographer earlier. Okay. So because that was giving me a lot of excitement कि like अच्छा शादी का photography में मैं अपना नाम बनाऊं. Absolutely. Let me just create some portraitures in wedding photography and all that. Yeah. And there was, I remember one fellow, one gentleman, old guy, used to stay, Haji Ali. हाजी अली को लग के ऐसा बाहर का रोड को जहाँ पे मेन सिग्नल है, आज भी उधर है, जहाँ पे वो सब शोरूम्स खत्म हो जाते हैं, बिग बिग शोरूम्स। हीरापन्ना जो शोरूम है, हीरापन्ना नहीं, उसके पहले मच बिफोर दैट, देयर इज अ सिग्नल, अपना सेंचुरी बाजार का पहले, हाँ, समवेयर देयर। वहां से एक रास्ता, पतला रास्ता हाजी अली को साथ सी फेसिंग पूरा जाता है, आज भी है वो। अच्छा। टिल डेट इट इज देयर। Okay. आई थिंक बिंदु जी यूज्ड टू स्टे देयर। Okay. Vaguely I remember Okay. that heroine. Okay. Yes. Bindu Everybody ji. knows Yeah, Bindu ji. Yeah. So छोटा सा, it was, I think it's like one of the finest area I would say of Bombay. Okay. Okay. तो वहाँ का एक एंड में सी फेसिंग किसका बंगलो था, हाँ. he was a खोजा मुस्लिम। Okay. एंड उनके घर पे कुछ फंक्शन था, तो करके बोला कि आप फोटोग्राफर्स को भेज दीजिए, इतना से इतना टाइम तक का हमारा ये रहेगा, एंड यू क्लिक द पिक्चर्स एंड फिनिश द फंक्शंस, एंड वी नीड दिस। वो टाइम में ना साइज होते थे, कितने साइज के फोटोग्राफ्स चाहिए, 4x6 चाहिए, या कभी कलर फोटोग्राफी में नहीं आई थी। इट वॉज, आई सीन कलर फोटोग्राफी, हाउ इट केम इन फ्रंट ऑफ माई आईज, That how color Unfolding rolled, in front of you. unfolding in front of me, So all these things when I was seeing, तो मैंने, मामा ने बोला तू जाएगा क्या, हाँ. देख अच्छे से करना है। पर कॉलेज कर रहे थे आप? कॉलेज मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स किया था। अच्छा। तो मैंने साइड में जेजे स्कूल किया। मैं बोला कि मैं आर्ट्स में अगर जाऊंगा तो आई वांट टू डू जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। हाँ. तो वहां पे एडमिशन मिल गया था मेरे को। सो आई वाज डूइंग दैट आल्सो, एंड दैट वाज इन वीटी स्टेशन, एंड दिस वाज लाइक नियर मेट्रो। वहां से वॉक करके आ जाने का। हाँ. तो कॉलेज करते करते मामा ने बोला तू जाएगा उधर। हाँ. तो तू उधर जाएगा और तू शूट करके आएगा। ओके. बट देख, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। ये ना, मतलब अपने पिताजी, मतलब मैं उनके पिताजी का टाइम का क्लाइंट था। हो मतलब नाना जी का कोई क्लाइंट था। हो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी बड़ी जवाबदारी। एब्सोल्युटली। सो आई वेंट देयर, आई क्लिक द पिक्चर्स, एंड व्हेन ही सॉ द पिक्चर्स, he gave extra money at that point of time. This money is for him. अच्छा. From my side. Oh, wow. That's so cute. What a push you get. Push, you know what I'm trying to say? Yes, totally. It's that definitely you feel that, wow, this is, I never expected that. Yeah. तो मैं तो छुप गया था अंदर। मामा को बोला कि आप दिखा दो भाई, मैं तो बाहर भी नहीं आऊंगा। तो स्टूडियो में आए थे, वो बोला कि उनको बुलाओ। And he gave me मतलब not a tip, but as a खुशी से, happiness. Encouraging you, and uplifting बाद में you. उनके उधर जितने भी फंक्शन होते थे, बोला आई वांट दैट, वो बच्चा जयेश ओनली। Wow. So that gave you the boost, that gave you the encouragement. That was the first assignment of yours. Yeah, actually, for this wedding and functions and all that. Okay. Then I started doing regular for a couple of years, lot of wedding functions and all that stuff, And after that, I think in 2 years, this I'm talking about in the year 76, 77 around. Okay. Around that time, I went to my 11th on the 74. So 75, 76, I was with Mama. Okay. Did all that, and JJ School of Arts was going on. Okay. So while doing all that, then 77,
I was in the dark room. I was doing the developing prints and all that. Suddenly, I could smell the smoke. And everybody outside was like rushing and saying, "Fatafat niklo, the fire has taken place." Oh my God. And Oh my I God. didn't know, how to go with this. जो कैमरा मिला हाथ में, जो उठाया। सामान मिला उठा के, जो मतलब क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था, बिल्डिंग वाज टोटल लकड़ी का बिल्डिंग, जो जूना जमाने का देखो कालबा देवी का, I know. like Everything that is building. Oh my God. In front of my eyes, I saw the fire. Oh my God. So I can't forget that. So sorry. I'm so sorry. Meaning at one point of time you feel that you are finished. Yeah. It's over. But before it starts, I felt it's over. On the road, totally, without studio. Suddenly that jhatka came. So Mama had, of course, he had this engineering and he was a well educated and he was getting married also. So Mommy said that fine, you can just look up for the job and all that. If Jayesh wants to continue, he can continue. I said nothing, but I'll continue. So actually, this is the reason I don't open up myself. No, it's okay. It's okay. It is okay. See, you have gone through in your life these kind of ups and downs. Crazily. Lowest of the low and highest of the highs. Crazily. Oh my God. So naturally, this is the intention के आपकी कहानी जो बच्चे हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ बनने की, उनको इंस्पायर करना है. That is the why, I want you to. So then I didn't give up. I took up again the photography. Mama gave me all the cameras, whatever. He said that, take whatever you want. And whatever we could salvage. आज भी मैं उधर से जाता हूँ ना, मैं वो रोड से टच नहीं करता हूँ. I don't go. It is अभी there. तक नहीं है. अभी तो कोई बिल्डिंग बनाई नहीं. Oh my God. Can you beat it? कितने साल हो गए, 77, 78 से लेके आज तक आरती, that place is like no possession, no nothing, no rebuild, nothing. Everything just went under the, like whatever those chaos. So anyways, so I continued my journey after that because I had to earn money now on my own. Yeah. So like single-handedly with my camera on my shoulders, and we both were like, what do you call? It was a journey to the weapon. Like Arjun ने गांडी हो, तुम्हारी पास एक कैमरा हो तो. But your parents were there, na? Yeah. So they were there. So there. like the thing is, the thing is like my dad, Papa was highly. Now see, the problem is, what happens sometimes. It's a curse or a blessing. You never know. So in our family, like I take it as a blessing. Definitely. Some people say it's a curse because Papa had, sorry, in between there was some Guju came. No, So like no in between, like so the Papa, that time he was MBA with law. Oh. And that to Calcutta में Barakpur से, where only 7 students were selected. Oh my God, highly educated. Oh. मतलब. And Kolkata is like a Oh hub. my God. And Calcutta culture, it went into that like crazy because he was the one who used to see their Satyajit Ray films and all those. Rabindranath Tagore was his idol and all that things. So Papa used to tell all that. And Papa's literature was like, I've never seen any literate person also. I mean, I would say the named one compared to him because he used to read. His reading was like crazy in our one-room kitchen. He was on the dining table, used to keep his lamp on. The entire night he used to like just read. You name the autobiography of the world presidents, prime ministers to authors to you name it and he had it.
He was a member of JB Patil Library Okay. in town. Okay. Wow. So सरस्वती जी उनमें इतना था कि लाइक एनी grace, सब्जेक्ट यू डिस्कस इट वाज लाइक हिज चैप्टर वाइज, ये चैप्टर का ये पन्ने पे ये उनका फ्रेज है, जाके पढ़ लो. Oh. Photographic memory. That brilliant. Okay. मतलब once it happened like that. भावना Soma, you must have heard. Yes. So स्टूडियो में, अपने स्टूडियो पे आई वाज शूटिंग जावेद साहब. ओके, बिकॉज शबाना का ड्रीम था कि ये उनका बुक का एक कवर था कि बोला वो जय शूट करेगा और कोई नहीं करेगा. एंड भावना जी तो लाइक ऑलवेज सेइंग दैट यू नो, आई मीन द वे यू पोर्ट्रे द पिक्चर्स, आई कांट थिंक ऑफ एनीबॉडी एल्स. Yes. So yeah, so Javed Saab came there. We finished the shoot, everything, and then Shabana ji asked me, like, you are son of Surendra Sheth? I said, yes, of course. He's my father. Okay. Well, like, do you know something? When you come to my place, don't say that word to my parents. वो लोग उनको ढूंढ रहे हैं, अरे बाप रे, मोमबत्ती के जैसे लेके. अच्छा. बिकॉज माई डैड शौकत जी एंड कैफी साहब. हाँ जी. कैफी साहब उनका तो ऐसा जैसे मतलब ना जाने जिगर, उनका मुशायरा ये सब तो डैड उनको कच्छ में मतलब लेके जाते थे पूरा. बोले कि सुरेंद्र शेठ का बेटा अगर ऐसा है और उनको पता चलेगा ना तो जान खा लेगी मेरी, कि मेरे को सुरेंद्र शेठ अभी कब चाहिए. दैट जिगरी. तो पापा के सब सर्कल थे सब, मतलब यही सब ऑल आर्ट्सी कल्चर, यू नो, ऑल दोस काइंड्स. मतलब उनके घर पे जितने भी मतलब ना शॉल्स या जो भी आप देखते हो ना कच्छ का, मोस्ट ऑफ देम पापा's गिफ्ट to them. All this mirror work stuff, you know. Because Papa used to do a social work in, and imandari social work, I would say, in Kutch. अच्छा. Because Papa's dad, he lost his dad at a very early age when he was just 2 years old. Okay. And उनके जो चाचा थे, मतलब उनके जो भाई थे, उन्होंने उनको बड़ा किया. Okay. एजुकेशन दिया, सब कुछ किया. So he was like a eldest son of the family. Okay. And we used to call him, he was like become a grandfather for us. So he was Kutch first collector. Okay. So the educational and upbringing wise, it was like a ऐसा था हमारे legacy, you know. Yeah. So he was the first Kutch collector, and he got elected in 74, 75, I remember, as a member of parliament. Wow. Imagine. As an independent, not with any party. Okay. So till date, people remember him after so many years, which was the example I got it when there was, you know, Amar Sons Bandra. Yes. They were just opening the new store. So I'm just cutting you off in between, back and forth. That is okay. So, yeah. You just say. Yeah. So they called me for the entire campaign to shoot. Like, and I was already established, like I had my own name and all that stuff, you know. So they were saying कि नहीं जयेश साहब के साथ शूट करना है. तो मीटिंग करते हैं. तो ताज लेंस में मीटिंग किया. ताज लेंस नहीं था शायद, रंग शारदा था, सॉरी, रंग शारदा में मीटिंग किया. उसका टेरेस था उधर. मीटिंग किया एंड ऑल दैट. तो यू नो हिज फादर केम, दैट जो ऑनर था उसके, जो मेन ऑनर था, ही केम टू मीट मी. ही जस्ट आस्क्ड मी 3 questions. बोला आई जस्ट आस्क यू 3 to 4 questions. Where are you from? I said, from Kutch. Kutch from where? I said, Bhuj. Tell me more about your leniency. Your legacy. Legacy. Yeah. So I said, my grandfather was Tulsidas Sheth. He just got up from his chair, called his son. Do you know with whom we are sitting right now? इनके दादा के इतने हमारे पे एहसान है ना कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे इस जन्म में. Wow. बोला कि don't ask him single question. Whatever amount he says, just write a check right now. Wow. Upfront. Wow. This is called, I said, something else, you know. It pays you back. It pays you back from where? You never know. You do good deed and you just leave it. Exactly. पता नहीं कहाँ से कैसे आएगा. होता है, you know. You don't know.
Can you believe it? In 2003, I did that campaign for 75 lakhs Wow. for 4 ad commercials. And 400 garments, all over hoardings, and everything was done by me Wow. single-handedly. Jitu Savlani got a break in that Yes. Yes. as a fashion photographer. So Yes, how yes. the things comes from where it goes, where it comes. It's grace and blessing of elders and ancestors. Absolutely. Very important. Absolutely. Culture is very important. And your karmas. Yes, And your yes. own karmas. Yes, That yes. matters a lot too. Yes. Along with that. Yes. You know. So how did you like establish yourself in the first studio, like first place? आपने बोला आपका the कैमरा था और journey आप after that incident happened, in my life, so I just kept on moving on. I didn't stop my journey. So during that time, I was going through all the magazines and all that. Now in between, then I tried for FTII also to join cinematography. I said this is a good time for me to like try, because cinematography was attracting me more. Okay, because I was doing wedding photography and all that. And that time the video, that VHS just came in front of my eyes. Yeah. बड़ा ऐसा डब्बा लेके and all that, and a big stupid camera with that was a sun burning kind of a light, which used to burn your skin so badly. तो ये सब देख के मैं बोला कि यार मेरे को ना ये करना है, अपना क्या सिनेमाटोग्राफी करना है. तो मैंने FTI 79 में मैंने अप्लाई किया था. Okay. 79 में अप्लाई किया था. I got through. Oh. Because of my J School of Arts and all that, and whatever this thing, so I got through. Almost I was packing my bags and going to join the FTII. स्ट्राइक हुआ उधर. मतलब निवाला इधर होता है ना मेरा, ऐसे आ जाता था. नहीं, it can be that way also. But whatever way, मतलब there is some kind of a thing कि like तू ये करना नहीं है तेरे को. यूनिवर्स आपको डायरेक्शन चेंज कर देती है क्योंकि आपका पर्पस दूसरा है. एग्जैक्टली. तो ये दरवाजा बंद भाई. तेरे पास ऑप्शन नहीं है. नहीं है. घूम जा. एंड नो ऑप्शंस लेफ्ट. सो कुछ करने को था ही नहीं मेरे पास. तो वहां पे वो स्ट्राइक चली लंबी, बिकॉज आई टोल्ड शबाना जी ऑल्सो अबाउट दैट. बोला कि दे वर ऑल्सो इन द सेम बैच. Okay. Shabana ji, then Benjamin Gilani, all those I'm talking about. Okay. Yeah. So you already knew them? No. Later on we got to know. अच्छा. तो बोला कि वो टाइम पे जयेश हम लोग का बैच खत्म हो गया था, उसके बाद ये स्ट्राइक हुई थी. अच्छा. और वो 5 साल तक चली थी. ओ बाप रे. Imagine. मैं बोला उतना तक मेरे में ताकत नहीं है, बॉस. वेट ही नहीं कर सकता हूँ मैं. 5 साल बहुत होता है. So then I started with the flow, or then I started seeing the magazines. All the Stardust, Star and Style, Filmfare, Cineblades and all that. And that used to get me like punch to kick. Rekhaji's pictures on the cover, and she was like with a backlight, and Jagdish Mali Saab and all that. Yes. Gautam came later. Gautam ji was in Lintas and all that. He was working that time, but he entered little later. But Mali Saab was there, and Dheeraj Chawda, one photographer. तो legendary photographers. Yes. Legendary. मतलब I would say कि like उनको देख के ना ऐसा लगता था कि यार इसका एक लाइट हम सीखने को मिल जाए ना, देखने को मिल जाए ना, मतलब इनफ. तो मेरे में बाद में दैट जेपी सिंघल, अरे सिंघल साहब, नो डाउट, ऑफ कोर्स, ह्यूज. और हमारे लिए तो वो सब ह्यूज होते थे, वेरी ह्यूज. मतलब टू बिकम लाइक देम, इट्स लाइक ऐसा लगता था ये जन्म कम पड़ेगा भैया. Full art, totally. Painting like pictures. Absolutely. Yeah. अभी ये लोगों के सामने तैयब बादशाह, गिरीश शुक्ला, those were like the masters of the glamour world. Yes. Masters. Glamour world के बाप थे वो लोग. Honestly. उनके एक तस्वीर देख के ऐसा सोचते थे कि यार कैसे किया होगा. So वो दिमाग में बैठ गया कि यार करना है तो बस अभी लेवल पे करना है. कुछ तो करना पड़ेगा. और दूसरा एक जो फोटोग्राफर था जो मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे थे वो टाइम पे, उनका नाम था राहुल. उनका पूरा नाम था राहुल पटेल, बट ही नेवर यूज्ड टू कीप पटेल. एक था अनुराधा पटेल के भाई, राहुल पटेल. तो इन्होंने अपना नाम सिर्फ राहुल रखा था. और उनके पिक्चर्स में देख के ना कि यार ये बंदा जो है, हिज फोटोग्राफी इज टोटली इंटरनेशनल लेवल. मतलब वो मैगजीन के पिक्चर्स देखो और इनके पिक्चर्स देखो, आई कुड कंपेयर एंड रिलेट विद दैट लेवल. ओके, मैं बोला मैं पकड़ूंगा ना
तो सिर्फ इनको ही पकड़ूंगा एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करके। तो मैंने मेरा जो कैमरा डीलर्स होते थे उनके पास जाके बोला कि यार आप तो जानते होंगे इनको, उनका नंबर दो ना प्लीज यार। नहीं हम लोग को मना करते हैं, हम लोग को नहीं, हम लोग नहीं दे सकते, यू नो दे आर वेरी सिक्रेटिव अबाउट दोज पीपल। या कि तो बाद में बहुत मैंने मतलब लिटरली बैग नेम आई सेड प्लीज यार मेरे को उनके पिक्चर्स, आप इतना खाली मैसेज पहुंचा दो कि आप इनके बहुत बड़े चाहक हैं, आई जस्ट एडोर हिज पिक्चर्स एंड खाली मैसेज पहुंचा दो आप। फिर अगर बोलेंगे आपको कि भाई नंबर देना तो देंगे, देना नहीं तो मत देना, तो ठीक है। तो मैं इनको घर के बाहर खड़ा रहूंगा, ढूंढ एड्रेस, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं जिद्दी बहुत था, आई हैड दैट हेडस्ट्रॉन्ग। तो मैं कंटिन्यूस मतलब ना फील्डिंग करते करते लग गए, मेरे को 2-3 महीने लग गए। फिर एक दिन नंबर दिया, दे दिया, राहुल भाई ने बोला है नंबर देने को। वाओ वाओ। तो मैंने नंबर घुमाया, कंटिन्यूस फोन करो, सुबह करता था शाम को करता था, सुबह करता था शाम को करता था। So you never used to come on phone? No. He was like a king that time. मतलब स्टारडस्ट का फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज राहुल। अरे बाप रे। एंड ही वाज शोभा डेज फेवरेट। ओहो, अभी बताओ आप, अरे लेवल देखो आप। अरे बाप रे। तो मैंने हमेशा ये देखा कि यार देखो पकड़ना किसी को है ना, लेवल वाले को पकड़ो भैया। एब्सोल्युटली। छोटू मोटू को पकड़ के, हमारे पीछे भी एक रहते थे, एक फोटोग्राफर थे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, बट वो मुझे इंस्पायर नहीं करते थे, यू नो, सॉरी फॉर दैट, बट यू नो वो होते थे। लेकिन वो मुझे लगता था चलो ठीक है यार, उनका पिक्चर्स देखता था ना, तो माधुरी मैगजीन होता था ना, वो फिल्म whatever is I'm not degrading anybody, please, that's okay. but the thing is like मुझे इंस्पायर नहीं करते थे वो। राहुल जी का मैं बोल रहा था कि भाई एक बार मिल जाए तो, और हमारे पास घर पे फोन नहीं होता था। हमारा तो नेबर का लैंडलाइन का जमाना होगा, लैंडलाइन, नेबर कॉलिंग भैया, उनको पैसा देना पड़ता था फोन आने का भी। करेक्ट। ये सब दिन कभी देखते याद आती है ना आरती, आई टेल यू आजकल तो मतलब ना लोग कितना इजी है, स्ट्रगल नहीं मालूम इनको। एग्जैक्टली, स्ट्रगल बोलते हैं पर स्ट्रगल भी कितना कंफर्टेबल है। स्ट्रगल और हमको ना, हमारा था 2nd फ्लोर पे फ्लैट था, और उनका फ्लोर सामने की विंग में क्रॉस करके जाके फोन अटेंड करने का होता था। बाप रे, कैन यू बीट इट? बाप मतलब क्या स्पीड से जाना पड़ता था यार, लाइक अ लाइटनिंग, फोन आया भागो। ऐसे सब देखे। Where you were staying this struggle time? Mulund only. So with your parents or with my parents? Yeah. With your parents. अच्छा. Yeah. You were with your friend. Yeah. Okay, so daddy was coming up and down to Kutch and going on that, and you know dad was like saying कि boss आप लोग को पढ़ाया मैंने 11th तक, मेरा जवाबदारी खत्म, अच्छा, अभी आपका जवाबदारी चालू, आपका पॉकेट एक्सपेंस वगैरह सब आपको उठाना पड़ेगा। अच्छा। सो वो सब इमीडिएटली उसने दिया। अच्छा, मतलब कैमरा एक लेके दिया था। अच्छा, कि डैड ने कि भाई आपका करियर शुरू करने के लिए आई इन्वेस्ट फॉर योर कैमरा एंड व्हाटएवर 1 or 2 लाइट्स, पीरियड ओवर। इसके बाद मुझे रिजल्ट दिखाओ, आप बन के दिखाओ। एंड डैड का मुझे एक बड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिला था कि बिफोर आई एंटर्ड इनटू दिस फोटोग्राफी फील्ड, मतलब आई वाज ऑलरेडी एंटर्ड, आई वाज देयर ऑलरेडी, बट द थिंग इज वो मेरे को जेवी पटेट लाइब्रेरी का मेंबरशिप का कार्ड दिया था, मेरे को उनका मेंबर बना दिया था, और बोला वहां पे जाके वर्ल्ड के जो टॉप फोटोग्राफर्स है ना जयेश, उनकी तू ऑटोग्राफी पढ़ तू और कुछ नहीं कर, बिकॉज हिस्ट्री में जा पहले। Don't just go with the present whatever glamour you are seeing. Go with the history of whoever your favorite photographer. So that time I read Richard Avedon, Philip Halsman, all those Herb Reeds. ये सबको मैंने तभी पढ़ा कि क्या स्ट्रगल करके वो लोग कैसे वोग में आए। छोटे छोटे मतलब वो आउटस्कर्ट्स में रहते थे, स्कॉटलैंड ना किधर से, ना जर्मनी में किधर, कोई कोपचे में ना, हाउ दोज पीपल हैड स्ट्रगल्ड। That used to inspire me so much, you know. तो ये करते करते मतलब राहुल जी का फोन लग गया, और उन्होंने एक बार सामने से फोन किया। That day was the biggest day of my life. Wow. जिसको आप गुरु मानने के लिए आप तड़प रहे हो ना, वो जब भी आपको लगता है कि भाई मतलब कि रेडी हूं मैं। खाली उतने फोन पे बात हुआ, जयेश भाई मैं राहुल भाई बोल रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, आप लिख लीजिए। एड्रेस सुन के मेरी मतलब ना ऐसा लगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। श्रेयस अपार्टमेंट, आई स्टिल रिमेम्बर श्रेयस अपार्टमेंट,
opposite Air India building, Nariman Point. Mulund, Nariman Point, Air India building. Look at the graph of mental travel. Yeah. It's not a joke. It's not a joke. It's not a joke. Either you're born that way, then it becomes easy, but you are staying in such a area, Conservative, middle class almost. and like, you know, for them it's like I had to deal with the very normal mentality kind of a people. I'm not saying again wrong, but I mean that was their upbringing. That was that. मेरा भी upbringing मतलब अच्छा हुआ था, but मेरी सोच बड़ी हो गई थी. Correct. लोगों की सोच हमेशा छोटी रहती है. Right. आरती मैंने सोच बहुत बढ़ाई अपने आप को. हाँ. कि बनूंगा तो यार एक दिन रिचर्ड एवर्टन के मतलब ना ड्रीम देखता था मैं हमेशा रिचर्ड एवर्टन का, फिलिप हेल्समैन का. उनकी बुक्स उधर से लेके 2 दिन के अंदर मेरे को निकाल के देना पड़ता था. उनके फोटो में कॉपी कर लेता था कैमरा से. तो ऐसा सब मैंने अपने आप को खुद को ही मतलब जितना एक्सप्लोर किया. यू आर अनलिमिटेड. तो आपने उसके ऊपर फोकस किया कि आई एम अनलिमिटेड, आई कैन बी समथिंग. तो इसीलिए मुझे ना इनसिक्योरिटी नाम की चीज कभी आई नहीं. करेक्ट. और मैं जब राहुल जी को मिला, आई टेल यू अगेन, गॉड मतलब ना हमेशा ऊपर वाला मेरे को ऐसे एक चीज लेता था, एक चीज ऐसे देता था. ही वॉज वेटिंग डाउन फॉर मी, डाउन हिज बिल्डिंग. कैन यू बिलीव इट? ही वॉज वेटिंग. राहुल जी जिसको मैं मतलब ऐसा कि उनको एक बार देखने को मिल जाए, 2 मिनट मतलब बात करने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए. करेक्ट. वो मेरे लिए नीचे वेट कर रहे थे. आई स्टिल रिमेम्बर, वाइट कुर्ता, ओके, नॉट दिस पॉलिटिशियन कुर्ता, वेरी इजी सिंपल कुर्ता, ग्रे कलर जीन्स, स्ट्राइप्ड ग्रे कलर जो आज जैक एंड जोन्स की मिलती है, वो टाइप वाली जीन्स आज उस टाइम पे. ओके. स्पेक्स, चश्मे थे, बियर्डेड गाय, कबीर बेदी से लंबे बाल. I can already see him. मतलब he was like a total Beatles का कोई रॉक स्टार आप मिलते हो ना. 6'1" height, broad shoulders. Wow. He was not a photographer for me. I said, राहुल भाई आप ना मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? He must have laughed at you. आप तो कबीर बेदी को कॉम्प्लेक्स दे सकते हो. पिंक गाय, totally handsome guy. वाह. इतना हैंडसम फोटोग्राफर तो कभी हम लोग ने सोचने में भी नहीं आता यार. स्केच करने से भी नहीं समझ में आता है. तो मुझे लगा यार इनके पीछे तो सब पागल होंगे. एंड नो वंडर आई वाज वाचिंग ऑल हिज पिक्चर्स ऑफ परवीन बाबी जी. All his pictures of Rekha ji, and that too, like, you know, doing the jogging on the Bandra bandstand. That kind of a pictures with the track suits and all. Wow. So his imagination was different. स्मिता पाटिल जी का जो पिक्चर्स लिए थे उन्होंने, oh my God, फिदा भाई. तो मैं तो मतलब गया उनके पास ऊपर डरते डरते, ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी. कि यार ये तो मेरे को मतलब चपरासी में भी रखे मेरे को, मेरा काम हो जाएगा. बट इमीडिएटली आस्क्ड, आप नींबू शरबत लोगे या नारियल पानी लोगे? नींबू शरबत. नींबू शरबत आ गया. इमीडिएटली क्या खाओगे आप? महाराज आज ढोकला बने हैं क्या? तो जयेश भाई को ढोकला खिला दो. फ्रेश ढोकला की 2 थाली खाई अच्छे से. मुलुंड से आया था भाई मैं, फास्ट ट्रेन पकड़ के. ऐसे ही वो टाइम पे भी रश कम नहीं था. अरे क्या बात कर रहे हो? भी रश कम नहीं था भाई. लोग थाना से रिटर्न होके आते थे, उतना रश होता था. बाप रे. सिचुएशन इज नॉट चेंज्ड. ओ बाप रे. नॉट चेंज्ड एट ऑल. ओके. क्योंकि वो टाइम पे फ्रीक्वेंसी कम होती थी ना बहुत. ट्रेन कम थी. करेक्ट. तो आपको रश तो उतना ही मिलता था. तो वैसा मतलब आप सोचो. और बस का लेट होता था, टैक्सियां नहीं मिलती थी. बहुत मुसीबत थी उस टाइम पे. सो उधर हम लोग बैठे तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो? मतलब फोटोग्राफी. नहीं, फोटोग्राफी में क्या करना चाहते हो? मतलब फोटोग्राफी में पता नहीं, मैं आपके साथ मैं आपका बैग उठाने को आया हूँ. मैं कुछ नहीं जानता हूँ. और आई वांट टू क्या मतलब जो आप बोलोगे लाइट बैग उठा, जो उठाना मैं आपको. नहीं, आप उसके लिए नहीं बने हो. लाइट और कैमरा उठाने के लिए नहीं बने हो. आप मुझे बताओ. देखो मैं जो फोटोग्राफी कर रहा हूँ वो एडिटोरियल फोटोग्राफी कर रहा हूँ. Okay. That's the first time I understood what is called editorial photography. He gave me the knowledge of that.
आपको अगर इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी और टेबल टॉप्स फोटोग्राफी ये सब करना है, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी करनी है, तो मैं आपको मित्तर साहब के पास भेजता हूँ. मित्तर बेदी वॉज द टॉप मोस्ट इन द एंटायर बॉम्बे. Big name. His studio was right behind Taj. And his client was Taj Groups. Oh. Can you believe it? Ratan Tata, J.R.D. Tata. Sorry, not Ratan Tata even. J.R.D. Tata was his client. Okay. So I said, राहुल भाई, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है. हाँ. मुझे बस आपके जैसा मतलब ना करना है कुछ भी तो. हाँ. तो सोच में पड़ गए, बोला कि एक काम करो आप ना, मैं आपको एक दो तीन नंबर देता हूँ, आप पहले अपने आप कुछ करो. अच्छा. तो ये है फिल्मिस्तान स्टूडियो का नंबर. वहाँ पे वो मैनेजर है, अच्छे से जानते हैं हमें. महबूब स्टूडियो का नंबर दिया मैनेजर का, जो लोग मैनेजर बैठते हैं ना, जो शूटिंग बुक करते हैं, उनका नंबर दिया. और ऐसे कुछ एक दो स्टूडियो के और नंबर दिए. बोला फोन करके जाओ, पूछो सिर्फ इतना कि आज किसकी शूटिंग चल रही है. मतलब मुझे रोकेगा तो कोई? तो बोला कोई नहीं रोकेगा, आप अच्छे से जाओ, अपने आप को अपनी प्रेजेंटेबल बनाओ. आप जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. कौन सा मैगजीन है से है कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आप बोलो मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं अभी शुरू की है मेरे कैरियर को, तो प्लीज 2-3 फोटो जो भी हीरोइन मिलती है, हीरो मिलते है, बहुत अच्छे से बात करो आप और जाओ आप. पहले ही मैं गया उधर, मैनेजर तो दूर की बात है, मैनेजर तो बोला ठीक है आ जाओ भाई, आज इसकी शूटिंग है. लेकिन वॉचमैन को कौन बताएगा? वॉचमैन बोला मैं मैनेजर को नहीं जानता भाई. यार मैं बोला बैंडर धक्का खाया, कुछ नहीं हुआ, इडली गरम. वही अपने उधर था. दूसरे जगह पे तक मुझे गया, तो वहां पे मेरे को ना क्या हुआ, ऐसे ही कुछ ये इंद्रजीत औरंगाबादकर वगैरह, वो टाइम पे वो लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे. हाँ. जूनियर फोटोग्राफर राम औरंगाबादकर के बेटे थे. हाँ. प्रेस फोटोग्राफर्स थे वो लोग. हाँ, तो मुझे ऐसे ही कुछ कहाँ तो मिले. तो मैंने उनको पूछा आप लोग क्या करते? बोला हम लोग प्रेस फोटोग्राफर हैं, आपको चलना है हमारे साथ, चलो. इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ देम. एक उमेश व्यास करके थे, एक इंद्रजीत औरंगाबाद करके थे, एक राजू उपाध्याय जो बेचारा चल बसा. यू नो, ये सब पूरी प्रेस की अलग मंडली थी. दे वर लाइक पेपरजीज ऑफ दैट टाइम. यू नो, तो उनके साथ मैं भी चला गया वो मंडली में, वो भीड़ भाड़ में. इवन आई स्टार्टेड मूविंग अराउंड. अभी उन लोग से मेरा कैमरा सुपीरियर था कंपैरेटिवली. तो थोड़ा वो लोग कतराते थे. बाद में दे यूज्ड टू आस्क माय टेक्निक्स, आप किसके थ्रू हो, क्या हो. मतलब मैं राहुल भाई के जरिए मतलब पुश कर रहा हूँ अपने आप को. उतने में मेरे को शोभा जी का फोन आया कि आप ऑफिस में आओ अभी कभी. बात उड़ते उड़ते पहुंच गई. बात उड़ते उड़ते राहुल जी ने बहुत अच्छे थे ना शोभा जी के साथ. तो मैं हमेशा मतलब ऐसा बोलता था कि, और राहुल जी भी बोलता था कि लड़का है अच्छा, मतलब कभी आपको जरूरत लगे तो आप ध्यान में रखना. तो शोभा जी के अपने ऑफिस से फोन आया, स्टारडस्ट की ऑफिस से फोन आया. तभी ऑफिस उनकी होती थी उधर मंत्रालय के पीछे, मैग्ना पब्लिकेशन, तभी वहां से पब्लिश होती थी. तो मैं गया उधर बाहर, पहली बार इतना बड़ा मैगजीन में बाहर उसका रिसेप्शन एरिया में बैठ के मतलब इंग्लिश आने का, इंग्लिश का प्रॉब्लम, ओके, ये सब कैसे बात करूंगा, हाउ विल आई स्पीक विद शोभा डे, ओके. सो ये सब तभी तब दैट टाइम शी वाज शोभा किलाचन. Okay. Yes. Okay. Shobha and she Devi. was doing what she was as She was the in editor. Stardust. Oh. She was the editor of Stardust. Okay. Main editor, जिनका नाम लेके पूरी मतलब फिल्म इंडस्ट्री वाले ऐसा हिलते थे. Because that was the only gossip magazine. There were two people. One was Shobha Day of Today's, and that time there was another one was Devyani Chaubal. They two were like, मतलब star used to like get shattered. They used to leave the set and they used to come. Not like today's time. They used to have power was too much. Power was too much. Paparazzi power was too much that my time. God. That Oh my time God. it was too much. Oh my God. I remember my childhood. मतलब Stardust was the first one initially to started like a yellow journalism. Yeah. The bedroom stories they started up. True. Who is going around with whom? Boss. True. वो सब तभी से चालू हुआ. Right. So she gave me the invitation कि आज एक काम करो, आज जो तभी आज जो नोवाटेल है ना, वो टाइम पे होटल थे हॉलिडे. तो हॉलिडे होटल में आज पार्टी है सुभाष घई की, कर्ज का मुहूर्त है.
गर्ल्स फिल्म जिसमें ऋषि कपूर है, टीना मुनीम है, बाकी सब जो भी हैं, बट आपको शूट करना है ज़्यादा ऋषि कपूर का। और मैं ऋषि जी का बहुत बड़ा फैन था, टू बी ऑनेस्ट। मैं उनका हमेशा उससे मतलब आई यूज्ड टू लाइक हिम समहाउ, यू नो, Very his charm and his easiness and his मतलब from Bobby days, Yeah. like ऐसा बंदा, ऐसा Something हटके मतलब so flawless, Yeah. such a flawless, Yes. you know। उनका एक फिल्म देखी थी मैंने, वो टाइम पे दूसरा आदमी हाँ. राखी जी के साथ था उनका, और एक दूसरी हीरोइन थी। So I was a big fan of his, Yeah. anyways, you know। Yeah. उनके फोटो के मैं कटिंग भी रखता था। हाँ. ओके, तो आई वॉज एक्साइटेड, ऐसे तो बोला खाली अपना ज़्यादातर फोकस ऋषि कपूर के ऊपर करना। ऐसे ठीक है, मैंने कितना रोल्स लेके जाऊँ, कितने फोटो, दैट ऑल यू डोंट आस्क मी, एज लॉन्ग एज यू गेट अ पिक्चर। मैं वो एटीट्यूड सुन के मैं बोला कि ओ भाई, पैसे नहीं है जेब में, अभी शाम को जाना है। रोल वाले के पास गया दौड़ते दौड़ते, पहले इतना स्ट्रगल होता था। वो रोल वाले के उधर जाके बोला भाई पैसा आज नहीं है ना, मेरा ये असाइनमेंट है, तू मेरे को प्लीज यार एक हफ्ते में मैं दे दूंगा तेरे को। लकीली बिकॉज ऑफ मामा एंड ऑल दैट ना, पीपल यूज्ड टू नो पहचान। देखो ऐसा सब चीज ना, ऐसा बोलते ना, मैं ऐसे निकला मैं। तो आई गॉट लाइक अबाउट 5-6 रोल्स, उतना लोग 36 का, मैं बोला इतना काफी हो जाएगा। एंड माई ड्रीम वॉज दैट टाइम ना आरती कि मेरा एक फोटो बस एक बार मैगजीन में मेरा बायलाइन के साथ आए ना, इनफ, आई विल क्विट। मैं जेरोक्स का पासपोर्ट साइज का स्टूडियो लेके छापते रहूंगा। मतलब वो सोच बड़ी थी, लेकिन एक अचीवमेंट, हाँ बस मैं कंटेंट हो जाऊंगा, मेरा इतना आ गया, बस इतना हो गया ना, बस वो एक फोटो पूरी जिंदगी देखेंगे लोग। और मैं सबको दिखाते रहूंगा, सालों देखो मैंने किया है। So cute you are, जयेश। तो यही सब, जब ज्यादा अरमान तो रख नहीं सकते यार, कि हमारे पास नहीं था कोई गाड़ी, नहीं कुछ, एवरीथिंग नथिंग वाज लाइक ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। लोग बोलते ना स्ट्रगल, भैया स्ट्रगल आप लोग ने, सब लोग ने मतलब 2 BHK 3 BHK में की होगी, हमने तो भैया 1 रूम किचन में ऐसे गार्डन के अंदर सो के ये सब करके, क्या टेरेसों पे सो के निकाले। ट्रू, ऑल द विटनेसेस आर देयर फॉर दैट। यस। सो एनीवेज, तो मैं गया नोवोटेल में। Luckily, the first time I was carrying a invitation card of Muhurat, film Muhurat. So I was like being proud. So all these other colleagues who were like, you know, जिसके साथ में घूमता था ना, मैं थोड़ा बोला कि भाई थोड़ा डिस्टेंस से बात करो आज। मैं कभी स्टारडस्ट की तरफ से आया हूँ। एक होता है ना, एक एटीट्यूड थोड़ा आ जाता है यार, हल्का सा। तो इवन देवर सिंह, वाओ किसको मिला तू उधर, कैसे पहचान निकाली? सबको इंक्विजिटिवनेस तो होता था, बोला नहीं ऐसे ही, मतलब मेरा काम देख के ना बुला लिया मुझे। एनीवेज, सो आई वाज नोइंग कि लाइक एंट्री उधर जो भी कौन अपने उसकी जो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट, जो हॉल था उसका, जहाँ पे मतलब रिसेप्शन, नॉट रिसेप्शन, आई मीन यू नो, अभी ना बुढ़ावा सवाल थोड़ा हो रहा है तो ना थोड़ा वर्ड खाने का, अरे यार वो होटल का वो जो होता है ना, लॉबी, नॉट लॉबी, एंट्री, वेयर यू आर टॉकिंग, जो होटल के अंदर का क्या बोलते हैं उसको, जो जहाँ पे पार्टी वार्टी होती है। अच्छा, दैट लाउंज एरिया एंड ऑल दैट। ओके, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती रहती है, ये सब पूरा जो एरिया, बैंक्वेट, यस बैंक्वेट। अब ये थोड़ा बादाम खानी पड़ेगी, सॉरी। ओके, सो एनीवेज, तो बैंक्वेट में था पूरा, एक साइड बार लगा था, एक साइड ये लगा, तो मैं पूरा ज्योग्राफी देख लिया। ऐसे तो एंट्री तो यहीं से करेंगे। अब उन एंट्री के आगे क्या होगा कि उनको मेरे को कैप्चर करना है कि फ्रॉम लॉबी से जब यू एंटर होंगे वहां से एंटर मेरे को शूट करना है। सो आई डिसाइडेड माई ग्राफ, क्योंकि अंदर तो बाद में सब टूट पड़ेंगे। उन लोग सब ग्रुप फोटो वाले हैं, वो सब PR वाले जो बुलाते हैं, तो भी ग्रुप फोटो ये सब, और मुझे नाम के वास्ते 2-4 ग्रुप फोटो निकालना पड़ा, विच आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो एनीवेज, यू वांटेड टू कैप्चर मोमेंट्स, यू नो। सो व्हेन ऋषि जी आए, एंटर किया ऋषि जी ने, ओके, मैंने वहां से उनका फोटो, पहला फोटो का चाप दबाया फोकस करके ना, थ्रू माई लेंस, आई सेड ओह मैन, ही इज द मैन जिसकी फोटो का कलेक्शन में करता हूँ,
And he was so casual with a nice, blazer. I mean, sorry, three-piece with a proper that bow tie and all that. Tux में थे पूरे, और he was like walking around. I was sure, and he was just say, he acknowledged. Acknowledge करते करते और अंदर आए. Then he started meeting with the people and all that. I started clicking his all possible angles. So headshots that time. Itne headshots. Okay. Till the time he opened the Champion. Oh. And I got that shot. Okay. $1 million shot where he's just looking up and the entire Champagne is like flowing. Okay. Wow. I said, मेरा काम हो गया. After that he came to me immediately. I said, I've never seen you before. So, I mean, I'm seeing you shooting me left, right, and center. So I said, sir, I'm a big fan of yours. I'm a freelancer. I just started my career. And you are going to be like my first subject. Okay. Oh, wow, that's amazing. सुभाष जी को बोला, सुभाष, इसको अपना सेट पे बुला लेना, अपना परसों गाना है ना, उसमें एक फोटोग्राफर की जरूरत लगेगी, इनको लेके आते हैं. I like his equipment also and he'll be in the shot. I said, fuck. ये मेरे को एक्टिंग भी कराएगा क्या अभी? Oh my God. I swear. हाँ. And उसमें मैं जाके फोटोग्राफ सब शोभा जी को दिखाए. हाँ. शोभा जी बोले, you nailed it, boss. तूने जो अचीव किया, you don't know what you achieved. So I said, are you serious or you are just telling me just like that? Yeah. No, I am too blunt. I would say upfront on your face that never ever try photography. But I'm giving you 10 out of 10. Wow. That just go ahead. Okay. And create your style. That your style is like, beautiful. You're capturing the moods and the moments. Yes, natural. Natural. That got into my mind. And then we continued, so then the picture appeared first time in Stardust magazine with Rishi Kapoor opening a champagne bottle with photograph by Jayesh. Fuck. And मैं पहले Jayesh shirt नहीं डालता था because I was influenced by Rahul ना. वो नहीं डालते, मैं क्यों डालूं? मुझे भी नाम नहीं चाहिए, मेरा सरनेम नहीं चाहिए. I want my identity of as Jayesh. सिर्फ Jayesh का नाम आया. वो फोटोग्राफ देख के उधर मैं सेट पे गया. और ये पिक्चर जो भी मैं शूट किया ना, उसके नेक्स्ट डे मैगजीन रिलीज में था और प्रिंटिंग में रात भर प्रिंटिंग में प्रेस में जाके वो मैगजीन रिलीज हो गया था. अरे बाप रे, दैट वाज सो फास्ट. ओके, एंड मोमेंट तो वो टीना मुनीम ने देखा और शी तो बिकेम माय फैन. लाइक यू आर कम विथ मी टू माय मेकअप रूम. सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड. Okay. Which I had just dreamt in my 11th hour. ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं? टीना मुनी मुझे बिठा रही है, चाय पिला रही है उनके मेकअप रूम में. बोला कि ये शॉट में स्कार्फ वाला दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना चल रहा था. और फिल्मिस्तान में था. Okay. वहां पे टीना जी ने इतना अच्छा वो स्कार्फ, ब्लैक स्कार्फ में क्या खूबसूरत लग रही थी. बाबा रे बाबा, मैं तो उनके धड़ फोटो खींच लिए. बोला कि और भी फोटो चाहिए तो मैं ना मेकअप रूम में अपन सेपरेट करेंगे. मैं चलो. आई डिड लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ टीना जी. अब मैंने उसको दिया स्टारडस्ट में वापस. अगेन आई वेंट टू शोभा जी की. शोभा जी मैंने ये शूट किया करके. शी लाइक्ड वन ऑफ द पिक्चर अगेन. बोला कि ये पिक्चर, ये ड्रेस ना किसी और को नहीं देना जब तक हमारे इसमें नहीं आता है. ओके. बोला कितना टाइम जाएगा? वो नहीं बोल सकती हूँ मैं. जब भी उनका इंटरव्यू होगा 6 महीना भी लग सकता है, व्हेनेवर. डोंट आस्क मी क्वेश्चंस. ओके. सो मैंने टीना को बोला कि देख, टीना जी, मतलब आई वाज टू कॉल टीना ओनली. तो मैंने बोला कि आपके फोटो मैंने स्टारडस्ट में दिए एंड ऑल दैट करके. तो बोला अच्छा, मेरे फोटो पसंद आए. ऑल्सो सी दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट टाइम एरा. इनोसेंस एंड 1-to-1 लेवल. ओनली 1-on-1. कोई सेक्रेटरी बीच में नहीं. सेक्रेटरी ओनली यूज्ड टू कम टू हेल्प यू फॉर योर, कि अगर फोन उठाने के लिए या समथिंग लाइक दैट. दे यूज्ड टू लाइक आई टू आस्क, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द सेक्रेटरी ऑफ दैट. तो मैं उनको फोन करता था तो उन अच्छे से जवाब देते थे. Slowly people started knowing me. There is somebody is arriving. Slowly and gradually. Yeah. Yeah. And that's how I entered into this Bollywood. Okay. And then there was no look back.
Okay. No look back till like decades and decades Yes, after that, yes, and yes. and number of bylines, and number of covers, and number of stars, and number of fans, and like there was no look back. Yeah. But then now now the thing was with me that I started getting saturated. With this same monotonous life. Yes. Okay. So the thing went different my way. Okay. Now the ball is in my court. Okay. So I want to play the way I want. How many years you did this? I started in 78 was my first cover. I mean, first Rishiji's pictures. Till that I did entire Sagar, Dimples Come Back. Of the entire Sagar. Sagar जैसी आंखों वाली. पूरा yes. सब पूरा Yes. सिप्पी साहब के 80s, साथ. ना, it was? 80 70s through and- 82, 83. Yeah. 82, 83. Again, Rishi Kapoor called me for the cover shot of Rishi and Dimple together. तो by that time तो like मतलब छा गया था. But in between मेरे को क्या हुआ था? Again, Rahul was like now he became my mentor, proper mentor, Okay. and he used to guide me. Okay. So like 3 साल 4 साल मेरा तो ऐसा कवर पे कवर आना शुरू हो गया. My name got spreaded in the Bollywood. It's like crazy immediately. तैयब बादशाह ये सब जितने भी मतलब जो थे राकेश श्रेष्ठा and all that. Yes, yes. They all like came into that league suddenly. Okay. So you started writing Jay Sheth or then only Sheth. Jayesh? Then Jayesh. Jay Sheth Yeah, you started yeah, writing. Yeah. Okay. So okay. then I came. Then Rahul told me कि बॉस हो गया अभी. तूने माउंट एवरेस्ट तय कर लिया. अभी उधर ही खड़ा रहेगा झंडा पकड़ के या कुछ और या करेगा. कुछ और करेगा. हाँ. सो आई सेड आप बताइए सर क्या करना है. हाँ. यू विल डू एड फिल्म्स. हाँ. एड फिल्म्स. हाँ. एड फिल्म में कैसे करूंगा. हाँ. मेरे को नहीं आता कैमरा से थोड़ी जेरो को चलाना है. हाँ. यू आर अ डायरेक्टर. Okay. In 84. Wow. 84 he gave me 4 ad films of his own related company. मतलब उनका जो relatives जो थे, they used to manufacture BDs. Okay. Okay. And he was against tobacco. Okay. So he used to say that मैं नहीं कर सकता हूँ. हाँ. लेकिन तू कर. हाँ. I'll give you entire thing, scripting से लेके उनको क्या सब चाहिए वो सब मुझे पता है. Okay. वो टाइम पे ना वो बीड़ी का सब खजाना वाली फिल्म, वो डाकू आए, हाँ. वो खजाना मिला उसमें से बीड़ी निकली है, वो सब ऐसा टाइप वाली. पूरा स्मॉल टाउन. Yes. 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 वो सी ग्रेड सेंटर्स के लिए. Yes. 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 हाँ. हाँ. और वो सब थिएटर में चलती थी. हाँ. थिएटरों में हाँ. 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 मोहन छाप बीड़ी, 201 नंबर बीड़ी, हाँ. ये टाइप वाला. हाँ. अच्छा. 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 यार फिल्म अपना फेमस स्टूडियो में सेट लगाया हाँ. हम लोग ने. हाँ. कैमरामैन कौन मालूम है? कौन? यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड. खुदा गवाह जिसने शूट किया ना, WB राव. ओ राव साहब. राव साहब हम तभी मिले. ओ. Can you believe it? ओ. राव साहब ना तभी का हमारा दोस्ती, तभी का हमारा जमाना. Adorably So yours, adorable. yeah. Seriously. Really. So these are the life we have seen. Okay. 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 पूरा लाइटिंग उधर करते थे फटाफट. बाद में कितनी देर तक लाइटिंग करते रहते थे. बाप रे. I done a film with him. या Oh my राव साहब और हम लोग वो जमाने के दोस्त मतलब. My So imagine the God. journey, like we Yeah, are talking yeah, about the yeah. journey. Yes, I mean, yes. we have gone through crazy, Yes, crazy yes, yes. journey. Jayesh, you took your studio, your first studio. Coming to that, coming to that. Yeah. Coming to that yeah, only, coming to yeah. that. So वो बीडी का हो गया. फलाना टीम का जाके मैं डिलीवरी किया उधर जबलपुर. जबलपुर में जाके उनको डिलीवरी किया. पूरा थिएटर में सब लोग आके देखे. डीलर्स लोग आके देखते हैं. तो डीलर्स लोग ने अच्छा तारीफ किया. वेरी गुड, वेरी गुड. Ads always like that. हाँ, हाँ. सो वो सब देखे, वो सब तारीफ किया. ये सब हो गया. उसके बाद वापस आया मैं. बोला राहुल भाई अभी क्या. ये तो कर दिया हम लोग ने. और उसका सारा प्रोसेस मैंने तभी जाना कि सेंसर सर्टिफिकेट कैसे लेने का, क्या करने का, डबिंग. वो टाइम पे तो एडिटिंग जो था ना वो स्लाइस के ऊपर होता था. ऐसा नेगेटिव होती थी. साउंड नेगेटिव अलग होती थी. मुझे पता है, मेरे डैड को देखा है. मैंने देखा है. मैंने उसके ऊपर काम किया बैठ के. क्योंकि वो अगर ये कट गया ना तो कट गया. और उसके बाद में टेप जॉइंट होती थी. और बाद में वो टेप इस तरीके से ज्वाइन करनी पड़ती थी कि वो ग्लिच ना दिखे. वो आर्ट होता था. ये हम लोग ना रात भर साला मैं उसको एडिटिंग में चला. मैं तो पक गया. मैं इतना पक चुका. ऐसे डे राहुल भाई कहाँ फंसा दिया आपने यार. बोले सब सीखने का ना. एड तो बनेगी. these are lessons for you. Absolutely. You know. But उसमें कुछ पैसे नहीं कमाते थे हम लोग. You know But what it I'm was trying to say. But it was it was education.
यू नो Learnings. आज ना लोग को मैं देखता हूँ ना, आरती बोलते कि यार कितना पैसे मिलेंगे, हम लोग ने कोई पूछते भी नहीं थे यार, हाँ बिकॉज हमको सीखने की भूख थी, बहुत भूख थी। एब्सोल्युटली। वो लाइट के सामने ऐसे पकड़ के हाँ, रील ऐसे रखना देखते पड़ता था थे, exactly. और देखना पड़ता था कि ये हाथ ऊपर है, ये या नीचे है, उसको तो उसको मैच कैसे दूसरे करे, मैच करना पड़ता अरे था। वो तो क्रेजी आई यूज्ड टू सिट विद माय फादर नो यस इन द एडिटिंग स्टूडियो। मतलब आप सोचो उस जमाने में फिल्में कैसी बनती होगी, बहुत कैसे तकलीफ फिल्में से, बनती होगी, बहुत तकलीफ से, फ्रेम बाय फ्रेम फ्रेम देखना बाय पड़ता फ्रेम, था। और क्या लेवल की क्वालिटी आज करके दिखाओ, मैं हार जाऊं। नहीं 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 आज आप गाइड बना के दिखाओ, मैं हार जाऊं। नहीं 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 हो सकता। मदर इंडिया बना के दिखाओ, मैं हार जाऊं। मुगल कमाल आजम बना के कमाल दिखाओ, आप हार कमाल जाऊं। कमाल कमाल फिल्म, कमाल फिल्म। सो दैट वाज द थिंग। तो अभी ये हो चुका, एड फिल्म का भी मतलब एक्सपीरियंस गेन किया मैंने। बोला कि मैं बोला कि लेकिन ये बीडी वाली एड फिल्म लेके मेरे को कोई एजेंसी में मत भेजना आप कि आप लिंटस में जाओ ना, ओएनएम में जाओ एंड ऑल दैट। ओके, तो बोला नहीं, एक काम करते हैं, हाँ अभी ना आप स्टूडियो चालू करो खुद का। खुद का। तो स्टूडियो के लिए पैसा चाहिए, मतलब मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। डैड ने बोल दिया जो भी कमाने का वो खुद के पॉकेट एक्सपेंस के लिए है मेरे पास। यहाँ से मैं आता हूँ नरीमन पॉइंट, ट्रेन के टिकट पास निकालता हूँ और मतलब चले जाता हूँ। बस का जो भी थोड़ा बहुत, और थोड़ा भूख लगता है तो दो मसाला डोसा खा लेता हूँ। बट these cover pages, नॉट जस्ट टू गिव सो मच मनी, no money, hardly. हार्डली $150, बस दैट्स इट। व्हाट आर यू सेइंग? Oh my $150, God. जिसमें It's just name. रोल का खर्चा भी ना निकले तुम्हारा, प्रोसेसिंग का भी खर्चा ना निकले तुम्हारा, Oh जेब my से मतलब ना God. उधारी पे खाता चलता था वो टाइम पे। बाप रे, यस डियर, बाप रे, दैट वाज नॉट इजी टास्क। ऑब्वियसली। तो ये करते करते जब भी मतलब ना बोला कि लेकिन ना, बोला कि नो नो, तो क्या हुआ था, हम लोग ने त्रिशूल पिक्चर साथ में देखी थी, अमिताभ की। आपने और राहुल ने? मैंने और राहुल ने। वो हम लोग पिक्चर ना साथ में बहुत शौकीन थे। अच्छा। तो हम लोग इंग्लिश फिल्में देखते थे, जिसमें हम लोग ने वो आइज ऑफ लॉरा मार्स देखी थी साथ में। ओके। फिर एक दूसरी भी ऐसी, द गन्स ऑफ नेवरन, ये सब जो क्लासिक्स हम लोग साथ में देखते थे। मुगले आजम उसने मेरे को दिखाई थी, कहाँ मालूम है, कि मुगले आजम ऐसे थिएटर में नहीं देखते। नहीं नहीं देख सकते। मुगले आजम आपको देखनी पड़ेगी भायखला के अंदर, वो ताज थिएटर, जहां दौड़ के आपको बेंच पे सीट पकड़नी पड़ेगी। हम लोग ने वो किया, बोला कि एक्चुअली मजा ना आरती, आई टेल यू, जो मूवी का जो आपको एसेंस चाहिए ना, आज देखो गेटी गैलेक्सी में आप जाके देखो, आपको जो मजा आएगी, चंदन में जाके देखो, अरे बाबा, मैंने गेटी गैलेक्सी में पठान देखी, मैंने एक सीन नहीं सुना है। दैट्स द क्रेज, मैंने सिर्फ हंगामा देखा है। दैट्स द क्रेज, बिकॉज़ दैट इज व्हाट एक्चुअली द व्यूअर्स, द अदर व्यूअर्स। वहां पे मल्टीप्लेक्स तो जाके देखो, कोई नहीं, वो उसको देखेगा, वो बीच में पॉपकॉर्न खाएगा, बीच में ये खाएगा, दैट इज नॉट अ क्रेज, नो वे। तो हम लोग ने तो ताज में ऐसा, वो जो लकड़ा छाप थिएटर बोलते थे हम लोग, वो लकड़ा छाप थिएटर में दौड़ के बोला, राहुल भाई अब मेरे लिए सीट पकड़ना, वो पहले जाके बैठ गए उधर ऐसा अड्डा जमा के। ओके, इट वाज क्रेजी, इट वाज फन, ही वाज लाइक अ वेरी चाइल्ड लाइक, बट हिज अपीयरेंस वाज लाइक डूड, पोइज्ड, वेरी डूड, टोटली। ओके, वो करके उसके बाद हम लोग ने त्रिशूल पिक्चर फिल्म साथ में देखी थी। नई नई थी, यश जी की, अमित जी, संजीव कुमार एंड शशि कपूर एंड पूनम डिलॉन वाज जस्ट एंटर्ड इन दैट। और उसमें एक डायलॉग आया था, डायलॉग उसमें ये आता है करके कि अमिताभ बोलता है कि मेरे पास जेब में एक फुटी कौड़ी भी नहीं और मैं 10 लाख का सौदा करने आया हूँ, ऐसा एक डायलॉग कुछ था। तो अमित जी का वो डायलॉग ना, तालिया सीटी पे सीटी पागल। तो बस उसके बाद हम लोग बाहर आए, मतलब मैं जा रहा हूँ, जाना नहीं है, रुको अभी इधर। डायलॉग सुना ना, अब मुझे स्टूडियो चाहिए। मैं यही डायलॉग नहीं, और हाँ, ये और वो जिस दिन आप मेरे को, मतलब जब तक आप ना मुझे आपकी शक्ल मत दिखाना, जब तक आप स्टूडियो भले 10 बाय 10 का हो, 10 बाय 10 का हो, रेंट पे हो, बिटवीन टाउन, मतलब वर्ली से लेके टाउन तक कहीं भी चलेगा मुझे, एनीवेयर इन बिटवीन। डिमार्केशन कर दिया, उसके आगे नहीं। वर्ली से तारदेव में जाओ ढूंढो, एजेंटों को पकड़ो, खुद जाओ, ऑफिस ढूंढो। 1 महीना ना आरती, मेरे को 1 महीने का टाइम दिया था उसमें। ओके, और इन 1 मंथ्स टाइम ना मेरा पसीने निकल गए थे यार। आई वाज सो डिप्रेस्ड, मतलब कि अगर मैं अचीव नहीं किया, मेरा तो कॉन्टेक्ट चला गया इतना अच्छा, ही विल नेवर सी मी, एंड ही वाज लाइक दैट कमिटेड। ओके, तो ये करके मतलब मैं, मतलब 2 दिन बचे थे,
just 2 days left and I was praying God के like प्लीज मेरे को दिलवा दो यार, दिलवा दो। तो 2-3 एजेंटों का मतलब ये बात चल रहा था। एक ने मतलब वो जगह दिखाई थी जहाँ पे हैंडलूम हाउस होता था पहले, और उसके सामने आज भी एक सुविधा होटल करके आज भी है, दैट इज आफ्टर द इन द फोर्ट एरिया। ओके फोर्ट एरिया, एंड फोर्ट एरिया वाज दैट टाइम द एरिया वाज ऑफ एजेंसीज, जितने भी टॉप मोस्ट एजेंसी, एवरेस्ट, आपकी फ्रैंक सिमॉइस, जितने भी टॉप मोस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसका सेंटर में ये गढ़ होता था। तो वहाँ पे गए हम लोग, तो उसने जो मालिक था, तो एक ए तारापुर वाला बुक शॉप के ऊपर था ये, एंड ही वाज आल्सो पब्लिशर, बुक पब्लिशर और समथिंग, एंड ही यूज्ड टू डू द कश्मीरी बंदा था, मिस्टर कॉल बोल के था। ओके बोला कि बाहर की जो एरिया है जो आप यूज कर सकते हो, आपका स्टूडियो का है, फोटोग्राफी का। अच्छा मेरा तो अभी उसको इंटरेस्ट है क्योंकि उसका पब्लिशिंग का है, तो थोड़ा बहुत कुछ मेरा एडवांटेज ले सकता है वो। करेक्ट। तो उस बहाने बात जमी, तो उसने, लेकिन जो हिसाब से वो टाइम पे कुछ 15,000 रुपीज उसने डिपॉजिट मांगा था, और करीबन 7,000 या 8,000 रुपीज वॉज द रेंट। दैट्स टू मच। 84, एग्जैक्टली 84। दैट्स टू मच। मेरे तो हिम्मत निकल गया। मैं बोला मेरे पास है ही नहीं है इतना पैसे। अच्छा आप आ जाना, थोड़ा कुछ रहेगा तो ऊपर नीचे करके देंगे। नाउ आई एम गेटिंग डाउन फ्रॉम दैट प्लेस, एंड सडनली आउट ऑफ द ब्लू आई एम मीटिंग, वॉइस कम्स, यू नो, पीछे से, ए जयेश। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो यार ये तो मेरा स्कूल का चाइल्डहुड लंगोटी दोस्त, साथ में एक बेंच पे बैठने वाले। तो तू इधर क्या कर रहा है? बोला यार मैं इधर जगह देखने आया, मेरे को स्टूडियो चालू करने का यार, ऐसा 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 ऐसा। तो बोला पहले तो कुछ खाते चलना यार। तो सुविधा में बैठ के हम लोग ने खाए, बहुत सारी बातें की, जूनी पुरानी सब। बोला यार तेरा तो नाम छप रहा है दपादप, यार क्या बात है, नाम छप रहा है, माल नहीं छप रहा है, उसका क्या करूँ मैं, क्योंकि ये सब ना पैसा मेरा, ये सब रोल वोल ये सब में उधारी खाते में ही चला जाता है। बोला ऐसा कैसा, ऐसा तो ऐसा कैसा लाइन तो पड़ा। बोला ऐसा लाइन पता नहीं मेरे को कौन सा लाइन है, क्या है। मेरा जो अरमान थे मैं पूरी अपनी था वो ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। तो बोले काम कर, चल साथ में जाते ऊपर। एंड ही वाज अ बिजनेस गाय, प्रॉपर बिजनेस गाय। तो साथ में गए ऊपर, और उसको बात किया विद प्रॉपर एटीट्यूड, एज बिजनेस टॉक्स। हम तो सारे क्रिएटिव वाले आर्टिस्ट लोग ना, हमारी भाषा कैसी होती है, प्लीज कर लो ना, you know, means that's a difference. You understand? There's a huge difference. Yes. You know, आज भी हम लोग के सामने बिजनेस आता है ना, मेरे मतलब I get little, you know, hesitant कि like, you know, how to ask for money, how to like deal with the money. अभी तो फिर भी मतलब it's become easier, but earlier days it was tough. Yeah. You know? That is the problem with the creative people. That's why they have managers. Absolutely right. Yes. Because you can't sell yourself. You can't sell yourself. Yeah. You can create. You can create. You're a creator. Absolutely right. बस. So true. So then he negotiated and everything. तो 15,000 का उसने वो डिपॉजिट बोला कि उसने बोला कि तू डिपॉजिट कम मत कर, तू मेरे को रेंट कम करके दे। तो कुछ 8,000 से 7,000 का रेंट पे आ गए। 7,000 रेंट, 1,000 कुछ कम किया, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो बोला डन, एग्रीमेंट किया, ये किया। मैं बोला मेरे को आज का आज ही चाहिए, टुडे इटसेल्फ। दोपहर का टाइम था, 2 बजे, तो फटाफट कोड वोड सब बाजू में थे, उस स्टैम्प पेपर पे सब जो भी कुछ दोनों का साइन वाइन करना था। बोला कि आज का आज खत्म करो। उसने बोला आज का आज खत्म करो, कल तुम्हारा पेमेंट, अभी तुम टोकन रखो, कल मॉर्निंग को सब पेमेंट आ जाएगा। तो मैं बोला लेकिन मैं तेरे को चुका नहीं पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा यार, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी। बोला काम करना, डिपॉजिट तो सेफ है ना यार, डिपॉजिट तो कौन लेके जाएगा, डिपॉजिट तो आई टेक इट बैक, व्हाट द बिग डील, जाएगा तो रेंट का तो पैसा तो निकालेगा ना, इतना थोड़ी तू मतलब रास्ता फोटोग्राफर है यार। तो मैं बोला नहीं वो तो मैं करूंगा कोशिश। सेकंड डे सब कुछ सही सिक्का हो गया। राहुल भाई को फोन भी नहीं किया, मैं डायरेक्ट शार्प, आई यूज्ड टू नो हिज टाइमिंग सो वेल, 10:30 शार्प आई वेंट टू हिज प्लेस एट श्रेयस अपार्टमेंट, एंड आई जस्ट थ्रू द की at him, you know, बच्चन साहब स्टाइल। मेरे पास जेब में कौड़ी भी नहीं है, और मैं 10 लाख की डील करके आया हूँ। एंड यू नो चाबी उनको दी मैंने। बोला कि जयेश एक बात बताऊं, ये जो चाबी है ना, ये तेरी लाइफ की चाबी है। ट्रू। मैं सिर्फ आजमाना चाहता था कि बेटा तू ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तेरे लिए सब दरवाजे खुले, you can open any door. True. So this is the kind of a thing, you know, तो तभी समझ में नहीं आती थी आरती। True.
वो कहावत है ना कि किसी को आप फिश बना के मत खिलाओ, उसको फिश पकड़ना सिखाओ. Exactly. So Exactly. he taught you how to Yes. fish Yes. and not Absolutely. feeding you, Not feeding me. so that you become independent. Absolutely. True. उसके बाद जो उसने जादू किया, okay, now you just see my magic. स्टूडियो का नाम रखा स्टूडियो दी आई. Okay. THEEYE. Okay. Studio the Eye. The slogan he decided, just one roll of a film can make you a star. Okay. Rupees 500 only, Okay. with makeup and hair. Portfolio. That is the first time in Bombay City the Okay. Portfolio studio started. That was you? Yes. Oh, wow. The first time in city like Mumbai, dream city of Mumbai, the Portfolio business started for a photography. Wow. Yes. Jayesh, Yes. you started the whole new Yes. process. Yes. That's all the vision was Rahul Bhai. All Rahul ji. Great. His vision. इस आपके पहले कोई नहीं करता कोई नहीं. पहचान में करते थे, ऑफिशियली नहीं करते थे. ओह. मतलब पहचान में कि मेरा फोटो निकाल दो घर पे आके. Nobody knew the word called portfolio. Professional portfolio. Okay. Yeah. Wow. So this was my first achievement as such. This is a new thing for me, and it's like, Yes. wow, that I'm Yes. discovering it now. Yes. और उसके बाद जब ये स्टूडियो ओपन हुआ, उसके पहले हम लोग ने क्या किया था, पूरा ब्लैक कार्डबोर्ड बनाए थे, ड्राइंग पेपर लेके आए थे, अच्छा पेपर लेके आए थे, सब खरीदे हम लोग ने. ओके. और इम्पोर्टेंट जो भी सिग्नेचर मार्केटिंग के लिए जो भी मतलब स्पॉट थे ना, वो स्पॉट डिसाइड किए थे. तो जिसमें रिदम हाउस था, Yes. काला घोड़ा, Yes. उधर सब जगह पे गए. आलिम हकीम का बाप डैड थे हकीम साहब, उनका सैलून था ताज में. Okay. उनको रिक्वेस्ट करके उनके सैलून में बोर्ड लगा के आए थे. जैसे आज स्टैंडी रखते हैं. करेक्ट. Right. वैसे So you kept your पर्सनली Oh. जाके पेस्ट करके आते थे कि एक हफ्ता तक लगाओ सिर्फ बस. Oh. जस्ट गिव इट फॉर वन वीक, देन यू थ्रो इट व्हाटएवर यू वांट. Okay. Okay. वहां से लेके पृथ्वी थिएटर तक पूरा छान मारे इन 2 days टाइम. Wow. And then the third day, when the studio was about to open, opening में किसी को नहीं बुलाने का, कोई स्टार वार कुछ नहीं. I mean, I was already established with the stars then. Yeah. I could ask anybody. हेमा जी सबका शूट कर लिया था. राजेश खन्ना का भी शूट कर लिया था. मतलब Wow. I was already moving around, you know. So no stars. Okay. 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 And you just sit. उसने पूरा डिजाइन किया था कि how should you sit. Now see, these are the grooming school and all that ना, हम लोग वो जमाने में देखे हैं. Wow. तो बिहाइंड मी ऐसा इतना ही छोटा सा ऐसा 10 by 10 का खाली रूम था. Okay. Okay. लेकिन उसमें क्या लाइट्स सब रखी हुई रहनी चाहिए. It's as if you are ready. Okay. It's not कि कोई आएगा तभी लाइट खोलेगा. It should be ready atmosphere. Okay. Right behind my back, मैं जितना मैगजीन का मेरा कवर्स थे वो टाइम पे ऑलरेडी मेरे ना कम से कम 60-70 कवर आ चुके थे. Okay. 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 वो सारे कवर्स का कोलाज बनाया था उसने. Okay. Okay. बोला you are a star. Okay. You should sit against this collage. Oh. As Jayesh said. Oh. इतना विजन से काम मतलब होता था. Wow. Presentation is very important. Yes, yes. और एक मेकअप मैन फिक्स रखा था टीवी वाले का. हाँ. उसको ब्लैक ड्रेस दे दिया था कि तू तेरा टीवी का जॉब जब भी रहेगा तू चले जाना. जब तक ना इनिशियल एक हफ्ता तक तू आ, तेरे को इतना पैसा दे देंगे हम लोग. अच्छा. 500 रुपए का है तो मतलब दिन में अगर जो भी आया तो हम लोग वो हिसाब से. Okay. तो राहुल का वो टाइम पे अप्रोच था कि दिस इज अ प्योर बिजनेस. Yes. दिस इज नॉट आर्ट. सारी लाइटिंग सारी चीज एक ही जगह पे मार्किंग करके खट हजाम की दुकान की जैसा तू धंधा करना चाहिए. इट शुड बी लाइक अ सैलून. राइट प्रोफाइल, लेफ्ट बस प्रोफाइल, खत्म. फ्रंट. इनफ हो गया. 4 फोटो 5 फोटो दे दिया, बहुत हो गया. एक रोल में तेरे को 12 फोटो देने होते हैं. 12 पिक्चर्स. आउट ऑफ द 12 पिक्चर्स 1 कॉन्टैक्ट शीट एंड सिलेक्टेड 6 प्रिंट्स. ओके. ओके. नेक्स्ट डे मिड डे में एड. बोले देख भाई इसके पास पैसा नहीं है. मिड डे वो टाइम का. Oh yes. बहराम कॉन्ट्रैक्टर, बिजी बी, जिसका Midday was कॉलम that time it was wow. big Big biggest thing, yes. you know, for the commercial aspect. Yes. And the news wise also. Corporate. Completely corporate. Yeah. उसमें मेरी एड आई. बच्चन साहब का तस्वीर. Photographed by Jayesh Sheth. नीचे one roll of a film can make you a star. By appointments only. Okay. Call this number. Okay.
मिड डे में एड छपी, धनाधन। नेक्स्ट डे से जो कॉल आने शुरू हुए यार रे, मतलब वो पागल हो गया, वो जो कॉल साहब थे ना, जो ऑनर थे ना, वो पागल हो गया। बोला ये मैं कभी खरीद लेगा मेरे जगह। मेरे को घर से मतलब मतलब इससे बाहर निकाल देगा ये तो जो पंच मतलब जो बोलते ना स्ट्रेटेजी, Yes. सो दैट स्ट्रेटेजी एवरीथिंग I understood from those days how the strategy can be worked out. Okay. And we moved on with that kind of a thing. He used to just come, just keep a check and all that. Like everything is fine. Anything you need, show me the results, show me take. Initially for 1 month. Now Jayesh bhai, I have to try something else. I'm also going for some other journey. I'll let you know later. Okay. And I said, fine Rahul bhai, it's working very good. But you just report me. Okay. So उनको मतलब तेरे को बेधारा नहीं छोड़ा है मैंने, बट कितना बिजनेस हुआ, क्या हुआ, like a father figure totally. इतना कम क्यों हुआ, इंक्वायरी क्यों नहीं गई, all that kind of detailings. So anyway, the first 6 months was like fabulous. मतलब I used to pay my rent, I used to save some money, I used to give some money to my home, so everybody was happy. And then I got married. What was it? I was going to come to that So point. then I got married after that. So then my marriage took place. But then the first thing I told Praveena always, मैं मतलब वाइफ को मैंने पहली बात बताया था कि देख भाई, मेरी एक शादी तो हो चुकी है. You are coming as a Southern. Remember that. And I was very serious of that. मेरी शादी ऑलरेडी मेरा कैमरा से हो चुकी है. उसके बिना मेरा कुछ नहीं है. एक बार तू चली जाएगी चलेगा. But I can never leave this one. This is my first love. Whatever you say, this is my first baby you say. This is my complete attachment. Yes. मैं रात को कैमरा के साथ सोया हूँ कितनी बार. So this is work commitment. I mean, whatever senti value बोलो या जो भी बोलो. So sometimes like people used to say कि तेरा picture, तेरा हाथ में जादू है कि तेरे कैमरे में जादू है. I said it's पता नहीं some communication, like how you talk to your car. Yeah. I talk to my camera. Yeah. The energy flows. The energy flows. The energy. You understood? Basically, the purpose was like initially also the way you said, the purpose has caught you. That's it. You have not caught the purpose. There you are. In every time the more you got diversified from your purpose, दरवाजा बंद हो गया, बेटा इधर नहीं इधर, वापस इधर, बेटा इधर नहीं इधर. Exactly. ऐसे करते करते you have come. Exactly. So you have come there. Right. So naturally you will talk like this. Absolutely. When you are getting married. Absolutely. Yeah. So you were there with your parents only. So then because one room kitchen we could not all settle. I mean accommodate ourselves. So my brother also was married. So that one room kitchen was not sufficient for us, and nobody had so much of money to buy. Even that time, affordable, but that was not an income. I mean we could loan इतना नहीं मिलता था easily. That time the loan was not so much available. People used to borrow money from each other, friends and all that. Time पे वो सब ये लोन की स्कीम तो सब अभी आई है. बहुत बाद में आई. So anyways, so हम लोग को लकीली एक फ्लैट मिल गया ऊपर ही वही बिल्डिंग में. So like another one room kitchen, and I shifted with my family there. In Mulund. In same building. अच्छा. In the same building. So हम लोग ऊपर नीचे थे. ऊपर नीचे. मतलब पास में थे सारे. Okay. So anyway, so वहाँ पे मतलब हम लोग का ये सब चला. अभी after that ना मेरे को जो स्टूडियो का जो था उधर से मेरे को दूसरी का अपॉर्चुनिटी मिली. Okay. So I told Rahul bhai, and Rahul bhai meanwhile was on a very beautiful journey of his life. Okay. Okay. And it was that story we can do some other time. Yes. Personally. Yes. So after that, the marriage and all that, I said I got a good opportunity. Okay. After that I got G Magazine. Bhavna Somaya met me, and she said that I'm starting something. Are you interested? That was in 85 something. Okay. So yeah, after one year later. Okay. जब तक मैंने स्टूडियो चलाया था उधर, उसके बाद मैंने बोला कि चलो now I got So this. you were there in Worli. And Not then Worli, Fort. Yeah. Fort. You were there in Fort. Yeah. और फोर्ट में ही रहते रहते आप ये पोर्टफोलियो का बिजनेस करते थे. So then I was established as a portfolio photographer. Okay. So I established myself, my name there. Okay. Like Jayesh does portfolios. Portfolio photographers. एंड फिर उसी उसके दौरान साथ आपने वापस मैगजीन का शादी हो गई. शादी के बाद वापस अगेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी बैक टू मैगजीन. जी मैगजीन. ओके. हाँ, उसके बीच में मैंने स्टार्टर्स भी ज्वाइन किया था जस्ट टू सर्वाइवल और टू सर्व बिकॉज़ नाउ आई एम अ रिस्पांसिबल पर्सन. एब्सोल्युटली. सो आई कुड नॉट अफोर्ड मंथली एक्सपेंसेस टू मीट अप एंड ऑल दैट थिंग. आई मीन यू नीड टू बी रिस्पांसिबल. सो इन बिटवीन आई डिड कपल ऑफ टाइम्स मैग्ना वाज ऑलवेज द ओपन हाउस फॉर मी. एज इन व्हेन आई से कि मेरे को अभी चाहिए भैया जॉब, आ जा भाई.
जाना है जा भाई. So on like a proper job. They used to give Proper you. job. Okay. Yeah. Okay. So I used With to draw salary and salary. all Yeah, that. salary. Because Okay. to establish yourself, to sustain your family, you know, ये सब चीज के लिए तुमको एक security चाहिए. 100%. Without security, you can't move. Can't function. Yeah. Right. So that way I started securing my family also, everybody and all that. And then when the G magazine came into my hand and I got to know it's a tabloid. It's a beautiful tabloid. And भावना जी और हमारा equation बहुत अच्छा बन गया था during the magazine, movie magazine and all that time. Super magazine, movie magazine, बहुत अच्छा equation बन गया था. And she was always liking my pictures because she used to blindly trust me. Like, you know, तू मतलब when I do the story, मैं तेरे को story कहा ये क्या you know, I give one caption and you shoot accordingly. So your conceptualization, it goes apt with the words. Yeah. You know, it's like a she's copy, doing the interview and you are doing the pictures. Yeah, but the thing is like उसका जो copy होता है ना, headline copy होता है ना, it used to match me with my pictures. Okay. So much. Okay. The presentation is proper then. Proper. You know, जिसको हम लोग copy बोलते थे advertising में.